Thank you for you. Yes. Yeah. So good evening and welcome to the Power Book. Good evening, ma'am. We are learning how to use the power, the rules of the law of attraction, the law of love, and our relationships. Okay. So tell me, how many of you wrote about the good things that you liked about the challenging relationship? Good things about the person. Hmm? आपने लिखे कि आपको लगा अरे कुछ अच्छा है ही नहीं उसके अंदर, क्या लिखूं मैं? ऐसा आ गया। I did right, but the tip that you gave yesterday, that when you're kind of having an argument or you're not liking is saying, then you start appreciating like the things that you can see or you think of. So I was just like, oh, eyes are so nice. Oh, voice is so nice. I was just, And it helped. yeah, I did. I was feeling super calm. I was not reacting only. Okay, good, good. तो बिल्कुल ऐसे ही करना है, okay? So Diksha, Yeah. you tried it now, okay? So if you keep on practicing it, okay, even with random people or with someone special, generally we want to keep the relationship good with someone who's special to us, okay? Where we want the relationship to improve, there applying this is very, very essential. Okay, so you have to try this, all of you, trust me. It'll be very smooth. You will be like an ocean of calm, जैसे बोलते हैं ना, ocean of calm, वैसा हो जाएगा, ठीक है? And the relationship that you want to improve, okay, where you had to write 10 good things or 5 good things about the person, that is really really important. ओके, जैसे आशमीन मैम कहती थी, जैसे लोग गुड़ मिलवाते हैं ना शादी के पहले पत्री में, हाँ, गुड़ मिलने चाहिए दो जन के, दिस इज मोर एसेंशियल. Okay, so if you think about the things that you like about the person and you only focus on those, yeah, then your relationship will definitely improve. मैम ने तो हम लोग से ऐसे करवाया था कि अपने 5-10 क्वालिटी लिखो, 10, और सामने वाले के 10 क्वालिटी लिखो. हाँ, एंड इफ दे आर मैचिंग, then only you will gel, then only you will move forward. What happens, like, see, if you have a friend, yeah, who likes reading books and you like reading books, then you will talk about a common topic. Yeah, you became friends because both of you like reading books or maybe both of you like adventure. But later on, you forget about this matching quality and you're focusing on, अरे इसकी तो ड्रेसिंग सेंस ही नहीं है, हाँ, अरे इसको तो she doesn't like watching English movies or thrillers or romance, whatever. But you're forgetting, why did you initially click? Because you had a common topic. Yeah, maybe both of you liked reading books, or more, or maybe both of you liked adventure, but now forgetting about that matching quality and focusing on some other quality, of course there'll be a tiff. Yeah, so that is why this looking at the quality is very important, like what is the matching quality of both of you. Okay, so we have to focus on that. It's like if you keep a person to work for you who's good in drawing, yeah, or maybe who's good in cooking. Let's think of that. You've kept a person who's good in cooking and he or she is your cook. Now after a couple of months you say, ये तो अच्छे से बात नहीं करता है, अच्छे से तैयार होके नहीं आता है, ठीक है, साफ सफाई नहीं रखता है. What was the reason why you kept that person? Because that person could cook. But now you're forgetting about that and focusing on something else. So what are you doing? You're forgetting about the main reason you kept that person. And you're focusing on other things. So of course there'll be a tiff. Of course you are focusing on something which is not matching to your main criteria. ठीक है? So that is why this making a list of positive things that you like about that person is very important. We forget about the main reasons we got attracted to that person, the connection between the two of you. Okay, not just attraction, it could be any person. हमारा जो connection था हम उसको भूल के बाकी चीज़ों पे ध्यान देने लगते हैं. That is when the tiffs arise. Okay, so when you sit down and write about these things, you will see that the relationship is getting better, because you'll remember कि these were the things which were the connecting points between the two of you. Okay, इसलिए ये लिखना बहुत ज़रूरी है. या एंड जब आप लिख रहे होगे तो आपको देखना होगा, वापस से याद करना होगा कि अरे हाँ, इसलिए मैंने इसको रखा था. तो क्या ये थोड़ा कड़ू बोलती है बट खाना तो कितना अच्छा बनाती है ना? तो क्या ये अगर अच्छे से खुद नहीं तैयार होती बट मेरा घर तो कितना क्लीन रखती है, सो दोज आर द थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर. सेम विद फ्रेंड्स, सेम विद रिलेटिव, सेम विद योर स्टाफ, सेम विद योर एम्प्लॉयज़, सेम विद योर बॉस. बॉस का तो हम लोग ऐसा नहीं सोचते, बॉस को हम लोग भूल जाते हैं कि वो हमारे को ये पे पैकेज दे रहा है इसलिए वो इतना अच्छा है, इसलिए मैंने वहाँ कंपनी ज्वाइन किया था, ये मेरा रोल था वहाँ पे. और उसका वो क्राइटेरिया भूल के हम लोग दूसरी चीज़ों पे ध्यान देने लगते हैं और मेन चीज़ भूल जाते हैं. या सो व्हेन यू स्टार्ट फोकसिंग
back on what was the main reason, you will start improving your relationships. Okay, so that was the thing. Yeah, तो अगर आपने नहीं किया है, please try it and you will see results happening in it. Yeah, okay. So anyone wants to share कि आज आपने मनी को फिर से लव दिया, या आपने रिलेशनशिप में बोलने के पहले कुछ सोचा, या आपने आपको जो अपने रिलेशनशिप इम्प्रूव करने थे, जैसे उन्होंने उस लेडी का एग्जाम्पल दिया था, उसने फोटोग्राफ्स निकाले, अच्छी बातों के बारे में सोचा, पास्ट की अच्छी बातों के बारे में. डिड यू थिंक ऑफ हाउ यू विल वर्क ऑन इट? यस पल्लवी जी, यू हैव अ क्वेश्चन. You have to unmute your device. Yeah. आपने शेयरिंग का बोला ना कि आपने आज पैसे को कहीं लव दिया गया, तो एक्चुअली मेरा आज प्रोफेशनल फीस आई थी, वो मेरे नहीं है, मेरे कलीग की थी, बट क्लाइंट ने मेरे पास हैंडओवर की थी. तो पहले तो 2 मोमेंट के लिए उसकी फीस है, तो आई वाज लाइक जस्ट कीपिंग और रखते, और मुझे आपका याद आया कि किसी का भी कुछ भी आपके हाथ में आने के बाद यू हैव टू गिव अ लव टू इट, तो तब मैंने वो किया. ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल ऐसे ही करना है. ठीक है, और अब तो मेरे को गांधी जी की स्माइल दिखने लगी और उनके कोई दांत नहीं दिखते हैं. ठीक है, आई डोंट नो इफ यू नोटिस इट और नॉट, उनके कोई दांत नहीं दिखते, जस्ट उनका गम या जॉ दिखता है. ठीक है, और लोअर लिप. ओके, एंड आई रिमेंबर्ड स्मृति जी थिंग कि गांधी पैसे की आंधी, बट आई थॉट पैसे नहीं चाहिए, मुझे रुपए चाहिए, तो आई चेंज इट, आई सेड रुपए की आंधी. ओके, सो आई चेंज इट टू व्हाट आई वांटेड. सो आप ऐसे ही देखो, यू स्टार्ट फीलिंग नाइसर. या good, very nice. So let's start with the warm up and then we'll continue with this wonderful chapter. Okay, so let's unmute ourselves, switch on the camera and let's so 1, 2, 3, start. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. Lovely. Yeah. So who's reading today? Okay, yeah, I'll just share the screen, Pallavi ji. तो कल हमने ये पढ़ी थी बातें, हम जिसको जो देते हैं हमको वही मिलता है. दूसरा क्या सोच रहा है, दूसरे ने क्या रिएक्ट किया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. लॉ ऑफ लव, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सिर्फ वही मतलब है कि हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, हमारे थॉट्स क्या हैं, आर वी गिविंग लव और नॉट. सिर्फ उसी से मतलब है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को. किस लिए कि मेरी लाइफ में क्या आएगा वो सिर्फ डिपेंड करता है कि मैंने क्या सोचा, मैंने क्या बात की, मैंने क्या रिएक्ट किया. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद लव मीन्स फ्रीडम. लव मीन्स फ्रीडम. नाउ हियर इज द ट्रिकी बिट विद गिविंग लव इन रिलेशनशिप्स, एंड इट्स द वन थिंग दैट हैज प्रिवेंटेड मेनी फ्रॉम रिसीविंग द लाइफ दे डिजर्व. It's only tricky because people have misunderstood what it means to give love to others. To be very clear about what it means to give love to others, you need to understand what it means not to give love to others. तो लव मीन्स फ्रीडम मतलब प्रेम का अर्थ है स्वतंत्रता. हमने सबने बाल गंगाधर तिलक का वो पढ़ा होगा, स्वतंत्रता इज आर फ्रीडम इज अ बर्थ राइट, है ना, आपने पढ़ा होगा ना वो वाला कोट, इट इज आर बर्थ राइट. तो जब हम दूसरे लोगों के बारे में जब सोचते हैं तो क्यों हमको हमारी लाइफ में वो नहीं मिलता जो हम डिजर्व करते हैं? क्यों? क्योंकि हम दूसरे लोगों को मिसअंडरस्टैंड करते हैं और उसके चक्कर में हमारी लाइफ में भी इश्यूज आने लगती हैं. ठीक है, जब हम किसी और को लव दे रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या करें, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स नॉट टू गिव लव टू अदर्स. माने पहले हमको ये समझना है कि हमको क्या नहीं देना है. ठीक है, क्या नहीं देना है, हम उनको डिक्टेट नहीं कर सकते. ठीक है, अच्छा लेट्स रीड, नेक्स्ट पैरा में ही है, लेट्स रीड. ट्राइंग टू चेंज अनदर पर्सन इज नॉट गिविंग लव. Yeah, please continue. Thinking you are right. पल्लवी जी पूरा पढ़िए, आई थिंक आपकी नेटवर्क या डिवाइस म्यूट हो गया था. ट्राइंग टू चेंज, फिर से एक बार प्लीज पढ़िए. Change another person is not giving love. Thinking you know what is best for another person is not giving love. Thinking you are right and another person is wrong is not giving love. Criticizing, blaming, complaining, nagging, or finding fault with another person is not giving love. तो हम जो लव सोचते हैं कि अरे मुझे पता है कि ये खाओगे तो तुम ठीक हो जाओगे, ऐसे कपड़े पहनना चाहिए, ऐसी बातें करना चाहिए, ऐसी बुक्स पढ़नी चाहिए. ठीक है, क्या करते हैं हमारे जो क्लोज वन होते हैं हम उनको ऐसे डिक्टेट करने लगते हैं. राइट, आप ऐसा करते हो अपने बच्चों के संग,
अपने सिबलिंग्स के संग, मे बी अपने पार्टनर के संग, अपने स्पाउस के संग, कि नहीं ये पिक्चर ही देखना चाहिए, यही सही है, बिकॉज यू फील यू नो द बेस्ट, है ना। बट दैट इज नॉट व्हाट इज गिविंग लव। हम सोचते हैं कि जो हमको पता है वो बेस्ट है, और मेरी बात सब मानेंगे तो सब लोग एकदम परफेक्ट हो जाएंगे, उनकी लाइफ भी बेस्ट हो जाएगी, हम लोग यही सोचते हैं ना। बट रोंडा बहन कह रही है ट्राइंग टू चेंज अनदर पर्सन इज नॉट गिविंग लव। जब हम उसको ऐसे डिक्टेट कर रहे होते हैं, उनको ऐसे समझा रहे होते हैं कि ऐसा करना चाहिए, माने हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो चेंज हो जाए, उनका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाए, सो दैट इज नॉट व्हाट इज गिविंग लव। ठीक है, थिंकिंग यू आर राइट एंड अनदर पर्सन इज रॉन्ग इज नॉट गिविंग लव। माने आप अगर जल्दी उठते हो तो आपको लगता है कि यही सच है, यही सही है, सबको जल्दी उठना चाहिए। आपको अगर लगता है कि साउथ इंडियन टेस्टी है तो आपको लगता है पूरी फैमिली को बस साउथ इंडियन खाना चाहिए, वो बेस्ट है ना। डू वी डू दैट? बिल्कुल यही करते हैं ना, कि सबको लगता है कि नहीं न्यूज़ मत देखो, ठीक है वो अलग बात हो गई, हाँ, कि नहीं ऐसी ही मूवीज देखनी चाहिए, यही बुक्स पढ़नी चाहिए, हाँ, यही घूमना चाहिए, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। एवरी वन इज डिफरेंट। एंड हमारा टॉपिक क्या है? लव मीन्स फ्रीडम। तो अगर हम दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज नॉट गिविंग लव। वो वही कह रही है, क्रिटिसाइजिंग, ब्लेमिंग, कंप्लेनिंग, नैगिंग, हाँ, माने किसी की आलोचना करना, दोष मढ़ना, शिकायत करना, बार बार टोचना या गलतियां निकालना प्रेम देना नहीं है। आप देखो, क्या आप अपने रिलेशनशिप में अपने लव्ड वंस के संग ऐसा कर रहे हो? तो जो आप कहते हो कि आप उनको प्यार करते हो, वो नहीं कर रहे हो। आप बोल सकते हैं कि अरे देन हाउ विल वी करेक्ट द पर्सन, है ना। वो हमको पता है गलत कर रहा है, उसको हम कैसे ठीक करेंगे फिर, अगर हम उसको समझाएंगे नहीं। नहीं, जितना ज्यादा आप उसके नेगेटिविटी पे ध्यान दोगे, क्या होएगा? वो और बढ़ेगा। ठीक है, दिस इज व्हाट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन डज। व्हाट यू आर फोकसिंग ऑन विल एक्सपैंड, इट विल इंक्रीज। तो हमको उन चीजों पे ध्यान नहीं देना है। आपको क्या करना है? आपको जस्ट सजेस्ट करना है, वो भी रोंडा बन बताएंगी। लेट्स रीड। हेट। Hate. Hate is conquered. Hate is not conquered by hate. Hate is conquered by love. This is a law. This is a law eternal. Gautam Buddha, founder of Buddhism. या तो गौतम बुद्धा कह रहे हैं घृणा को घृणा से नहीं, प्रेम से जीता जाता है। यह एक शाश्वत नियम है। आप व्हेन आई वाज वेरी यंग, तो पता नहीं कहाँ से एक बुक पढ़ ली थी, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द ऑथर्स नेम, अभी भी वो बहुत पॉपुलर बुक है। Dale Carnegie. हाँ, डेल कार्नेजी। Dale Carnegie. या डेल कार्नेजी, उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि अगर आप कैसे फ्रेंड्स को अट्रैक्ट करोगे, कैसे आप लोगों को समझाओगे, आप हनी देके, स्वीट्स देके, मिठाई देके दूसरों से फ्रेंडशिप करोगे, ना कि उनकी पिटाई करके, है ना कि उनको डांट लगा के। कैन यू बिफ्रेंड अ पर्सन बाय स्कोल्डिंग देम, बाय शाउटिंग एट देम? नो। तो वो यही कह रहे हैं, हेट इज नॉट कॉन्कर्ड बाय हेट, हेट इज कॉन्कर्ड बाय लव। हेट मतलब कि अगर कुछ नेगेटिविटी है तो उसको अपन प्यार से जीत सकते हैं। दिस इज लॉ इटर्नल, माने यूनिवर्सली यही है ना, कि अगर हम किसी से प्यार के दो शब्द बोल देंगे तभी वो हमारा फ्रेंड बनेगा, तभी वो हमारी बात सुनेगा। तो जब हम किसी को, हमको लगता है जो सही बात है, अगर आप चाहते हो कि वो समझ जाए, तो हमको उसको प्यार से समझाना है, हमको उसको एग्जाम्पल से समझाना है, नॉट बाय स्कोल्डिंग, शाउटिंग और बीटिंग दैट पर्सन। तो बिल्कुल यही रोंडा बन कह रही है कि हम सही हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन किस तरीके से हम अपनी बात सामने वाले को समझाते हैं, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो कोई भी रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हाउ यू कम्युनिकेट, व्हाट इज योर टोन ऑफ टॉकिंग, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। आप बहुत सी बातें बोलते हो, लेकिन जो टोन होता है हमारा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। आप ठीक ही बोल रहे हो, कितने सारे एग्जाम्पल्स होते हैं ना, ऐसे क्या बनाया है खाने में, कोई जन टॉन्ट मार के बोलते हैं क्या बनाया तुमने आज खाने में, कुछ बनाया भी है क्या, है ना। आप देखो बात वही है, लेकिन किस तरीके से अपन बोलते हैं उससे पूरा इम्पैक्ट बदल जाता है। ठीक है, सो व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, हाउ वी स्पीक मोर देन व्हाट वी आर स्पीकिंग। ठीक है, आप बिल्कुल सही हो, आपको सब कुछ पता है, लेकिन कैसे हम उसको कम्युनिकेट करते हैं सामने वाले से, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। आप देखो ना, देर आर क्लासेस विच ओनली टॉक अबाउट मार्केटिंग। हाँ, मार्केटिंग में क्या है, आप उसको कुछ भी सेल कर सकते हो, लेकिन किस किस तरीके से आप सामने वाले को समझाते हो, वो इम्पॉर्टेंट है। आप अगर वो ऑडियो पे ध्यान दोगे, उसमें यही बोलता है कि आप पूरे लाइफ, एवरी वन इज अ सेल्स पर्सन, एवरी वन इज अ सेल्स पर्सन। ऑडियो में यही बोला है। आज से माने कैसे आप सेल्स पर्सन हो, आपको अगर समोसा खाने का मन है, ठीक है, यू हैव टू सेल दैट आइडिया टू योर फैमिली। आपको कोई हॉलीडे पे जाने का मन है,
तो यू हैव टू सेल दैट हॉलीडे टू योर फैमिली। यही तो है ना, हम उसको इस तरीके से बोल रहे हैं, बट इट इज अ फैक्ट। हाउ यू कम्युनिकेट योर इंटेंशन टू द फैमिली सो दैट द होल फैमिली एक्सेप्ट्स, हम लोग वहीं से सीखते हैं। सेम वे व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर बॉस अबाउट him giving you a promotion or him giving you a leave, what is that? You are selling an idea, you are selling your request। उसको आप कैसे बात करते हो, कैसे कन्विंस करवाते हो, वो इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ यू आर स्पीकिंग, एंड इफ यू आर शाउटिंग, क्रिटिसाइजिंग, ब्लेमिंग, तो वो बात तो नहीं होने वाली है ना, उससे और रिलेशनशिप गड़बड़ी होता है। यस। I want to share a story I received that demonstrate the care we must take in our relationships. A man's wife had left him and had taken their children with her. The man was devastated. He blamed his wife and he refused to accept her decision. He continued to contact her, determined to do everything he could to change her mind. He may have thought he was acting out of love for his wife and family, but his actions were not loving. He blamed his wife for their marriage ending. He believed that she was wrong and he was right. He refused to accept his wife's decision to choose for herself because he would not stop contacting his wife. He was arrested and sentenced to jail. Yeah, let's continue. The man eventually realized that he was not giving love when he denied his wife her freedom to choose what she wanted, and that he lost his freedom as a result. पल्लवी जी आप म्यूट हो गए। If you हाँ, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ से पढ़िए। the law of attraction, आ रहा है? सुनाई दे रहा है? हाँ जी। The law of attraction is a law of love, and you cannot break it. If you violate it, you break yourself. या जब ये हम लोग पैराग्राफ पढ़ रहे थे, आपको कोई हिंदी वाली मूवी याद आ रही थी, नाना पाटेकर एंड मनीषा कोइराला? हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर इट? ही वांटेड, नाम नहीं याद आ नाम नहीं याद आ रहा है ना। और वैसी एक सिमिलर मूवी थी, उसमें जूही चावला एंड अनिल कपूर का भाई था। मेरे को ये दोनों पिक्चर इसी बार याद आ गई दोनों। इट्स लाइक व्हाट, द गाय इज ट्राइंग टू कंट्रोल हिज वाइफ, ठीक है, और जब वो उससे बचना मतलब लाइक यू नो शी वांटेड अ फ्रीडम, शी वांटेड टू लिव हर लाइफ हैप्पीली, और जब वो उसको छोड़ के जाना चाहते थे, उसको जाने नहीं दे रहे थे वो लोग, है ना। द हीरो जस्ट वांटेड टू कंट्रोल हिम, कि उसको ऐसे ही रहना है, ऐसे ही करना है। हाँ, उसकी इंग्लिश मूवी भी थी आई थिंक, जूलिया रॉबर्ट्स वाली, वो भी, दैट ऑल्सो नेम आई एम येट टू रिमेंबर। तो ऐसे ही था। तो वो कह रहे हैं कि जब वो जा रहे थे, तो यू नो दैट गाय जस्ट वांटेड टू कंट्रोल द वाइफ इन दिस एग्जाम्पल। या तो वो उसको लगता था कि वाइफ गलत है, वो चाहता है कि फैमिली को बचा के रखें, और द वाइफ वांटेड टू लीव। तो हुआ क्या, वो अपने वाइफ का फ्रीडम कंट्रोल करना चाहता था, उसको लाइक उसको बेसिकली कंट्रोल करना चाहता था, ठीक है। और हुआ क्या, उसको पुलिस ने पकड़ लिया। हुआ क्या, शी वॉज बीइंग डिनाइड हर फ्रीडम, इसीलिए उसका भी फ्रीडम चला गया। तो क्या कह रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखता है कि मेरा जो लव देने का इंटेंशन है, उससे सामने वाले को क्या हो रहा है, ठीक है। इज ही और शी गेटिंग यू नो सफोकेटेड, नॉट एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ और हरसेल्फ, वो डिपेंड करता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। इफ वी आर नॉट लेटिंग द अदर पर्सन बी हाउ दे वांट टू बी, देन वी आर ब्रेकिंग दिस लॉ। या आपको डर में भी याद होगा, डर जो मूवी थी, उसमें भी शाहरुख खान ऐसे ही करा था। He was just forcing his love on Juhi Chawla. Does not happen like that. Yeah. तो law of love, it does not mean कि जो हम कह रहे हैं वो सब सच है. It does not mean that if my wishes, my emotions are suffocating the other person, then that is not love. Love means freedom. आपने ये भी पढ़ा होगा, if you love someone, set him or her free. If she comes back, then she's forever yours. If she doesn't, then she never was. आपने ये भी कोट पढ़ा होगा, है ना। तो ये क्या है, ये this is this only, that when you love someone, you have to let the person be. हमने मैजिक बुक में भी ये पढ़ा है कि कोई जो हमको प्यार करता है, वो हमको जस्ट जीने दे जैसा हम चाहते हैं, है ना। दैट इज लव ना। इफ दैट पर्सन इज ट्राइंग टू सफोकेट अस, आपको कैसा लगेगा? आपको नहीं अच्छा लगेगा। तो वैसे ही हमको सोचना है, व्हेन यू आर लविंग समवन, यू हैव टू लेट दैट पर्सन बी इन द सेंस लाइक उसको उसके ऊपर अपने विशेस, अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स नहीं थोपनी है। ओके, या I am sharing this story because the
ending of intimate relationships is very challenging for some people. You cannot deny someone else's right to choose what they want because that is not giving love. It is bitter pill to swallow when your heart is breaking, but you must respect everyone's freedom and right to choose. What you give to another person, you receive yourself. And when you deny another person's freedom to choose, you will attract negative things that deny your own freedom. Maybe the flow of money to you decreases, or your health weakens, or your job takes a downturn, because all of these things would affect your freedom. There is no other person for the law of attraction. What you give out to others, you give to yourself. या तो यही इसलिए बता रही हैं आप। देखिए रोंडा बन ने भी शेयर किया ना कि उनका उनके हस्बैंड के संग सेपरेशन हुआ था, ठीक है। तो दैट इज वाई शी इज टेलिंग अस कि जब कभी भी कोई रिलेशनशिप एंड होती है, ठीक है, तो बहुत चैलेंजिंग होती है लोगों के संग, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी बिल्ट अ लाइफ अराउंड समवन। अब जब आप उससे दूर होते हो तो इट इज लाइक वेरी चैलेंजिंग, वेरी डिफिकल्ट, बट फिर भी यू हैव टू लेट द अदर पर्सन बी, बिकॉज उसकी चॉइस कुछ और है, तो आपको उसको जाने देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो यही कह रही है। और अगर हम उसको जाने नहीं देते हैं, अगर हम उसको ये फ्रीडम डिनाई करते हैं, तो क्या होता है, हम उसकी फ्रीडम को कंट्रोल कर रहे हैं, तो कोई हमारी फ्रीडम को भी कंट्रोल करेगा। दैट इज हाउ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। शी इज टेलिंग अस, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे लाइफ में कैसे नेगेटिविटी आती है, यू विल अट्रैक्ट नेगेटिव थिंग्स दैट डिनाई योर ओन फ्रीडम। कैसे, हेल्थ में चैलेंजेस आ सकते हैं, मनी में आ सकता है, और क्या होता है आपके जॉब में भी गड़बड़ हो सकती है, बिकॉज ये सारी चीज़ें आपके फ्रीडम को अफेक्ट करेंगी। सो वॉट यू गिव आउट टू अदर्स यू गिव टू योर सेल्फ। कि कोई जा रहा है हैप्पीली, उसको आप टाटा करिए, ठीक है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक, टू कम्युनिकेट, टू शेयर, बिकॉज कोई भी रिलेशन जितना ज़्यादा आप अच्छे से कम्युनिकेट करोगे उतनी ही स्ट्रांग होगी। अगर आपका कोई रिलेशनशिप एंड भी हो रहा है तो भी उसको आप हैप्पीली एंड करना है। मैजिक बुक में तो पूरा एक चैप्टर है इसके बारे में ना, कि जब कोई सेपरेट होते हैं कपल्स, तो क्या बच्चों को इफेक्ट करते हैं, आप नेगेटिव हो रहे हो उसके बारे में, उसमें भी आपको पॉजिटिव चीज़ें ढूंढ के यू हैव टू डू ग्रैटिट्यूड। रॉन नंबर ने पूरा एक चैप्टर इसके बारे में बनाया हुआ है। ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इफ समवन इज गोइंग, let them go, give them blessings so that you attract more blessings in your life. Yeah. Giving love to other people does not mean you let people walk all over you or abuse you in any way, because that's not giving love either. Allowing another person to use you doesn't help that person, and it surely doesn't help you. Love is tough, and we learn and grow through its law. And as a part of that learning, we experience consequences. So it is not love to allow another person to use or abuse you. The answer is get yourself onto the highest frequency of a good feelings that you can, and the force of love will resolve the situation for you. या अब ये सेम चीज़ वो कह रही हैं कि अगर हमारे लाइफ में कोई ऐसा है जो हमारा अब्यूज़ कर रहा है, अब्यूज़ इन द सेंस मेंटल अब्यूज़ कर रहा है, कोई हमारा फिजिकल अब्यूज़ कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हम अपना रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और वो हम अपना रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो तो ठीक बात है कि आपको लगता है कि नहीं वो मुझे इतना प्यार करता है, इट इज़ ओके, उसकी मैंने 2 बात सुन ली, मैंने उसके लिए एक्स्ट्रा काम कर लिया। नहीं, अगर हम उसको ऐसा करने दे रहे हैं तो आई एम नॉट हेल्पिंग दैट पर्सन। कैसे, कि वो मेरे को अब्यूज़ कर रहा है, मेरा फ्रीडम को कंस्ट्रिक्ट कर रहा है, मुझे उतना एक्सप्रेशन नहीं दे रहा है, तो क्या होगा, वो और लोगों के संग भी ऐसा करेगा, वो और लोगों के संग ऐसा करेगा, तो क्या होगा, उसके लाइफ में वो ही चीज़ें आएंगी, है ना। इफ समवन इज कंस्ट्रेनिंग मी, तो उसको क्या मिलेगा लाइफ में, उसकी लाइफ में भी कोई ना कोई उसको कंस्ट्रेन करेगा, उसके लाइफ में भी नेगेटिव चीज़ें आएंगी। तो शी इज़ टेलिंग अस, इन स्पाइट ऑफ यू लविंग दैट पर्सन, हमको अपना स्टैंड लेना होगा। उन्होंने ये क्यों एग्जाम्पल दिया कि चलो ठीक है, आप तो सोचो कि नहीं, आप उसको बहुत प्यार करते हो, लेट हिम बी, लेट हिम स्कोल्ड मी, लेट हिम यूज मी, कि मैंने 2 एक्स्ट्रा काम कर दिए उसके लिए। आई एम आपने सुना ना कि कोई बेंड होता है तो उसको लोग और झुकाते हैं, है ना। तो अगर हम और झुक रहे हैं उसके लिए और ओवर द टॉप जाके कुछ काम कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हम उस पर्सन के लाइफ में और नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हैं। कैसे, वो मेरे को नेगेटिविटी दे रहा है तो उसके लाइफ में तो नेगेटिविटी आएगी ही। तो आप कुछ भी तरीके से समझो, अगर आपने ऐसा समझा कि आप अगर अपने लाइफ में अपना स्टैंड नहीं ले रहे हो तो और लोग आपको सेम चीज़ें करेंगे, नो वन एल्स विल स्टैंड फॉर यू।
आप एक इस एंगल से सोच सकते हो। दूसरा, अगर आपको लगता है नहीं नहीं आई लव दैट पर्सन सो मच, इट्स ऑल राइट, अगर हम फैमिली है ऐसे नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, एक तरीका ये हो गया। सेकंड हो गया कि आप सोचो वो नेगेटिविटी कर रहा है तो उसके लाइफ में तो नेगेटिविटी आएगी। सो वट एवर यू फील यू हैव टू स्टॉप टेकिंग अब्यूज, यू हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। शी इज टेलिंग अस कि इसको चेंज कैसे करना है। अगर आप नहीं चेंज कर पा रहे हो उस अब्यूज को, कि आप यू नो समवन इज जस्ट वॉकिंग ऑल ओवर यू, कैसे चेंज करना है? आपको खुश रहना है। When you start taking care of yourself, when you start talking to yourself in the mirror, yeah, that is one very very important practice if you are facing such a kind of a situation, that you start talking to the person in the mirror. जितना ज़्यादा आप खुद से प्यार करोगे, आप देखोगे आपके situations change होने लगेंगे। ठीक है? You have to take yourself in that higher frequency so that the things around you start changing. Okay? And she's telling us the force of love will resolve the situation for you. Yes. Whenever anyone has offended me, I try to raise my soul so high that the offense cannot reach it. Rene Descartes. Descartes, mathematician and philosopher. या वो कह रहे हैं जब भी कोई मेरा बुरा करता है तो मैं अपनी आत्मा को इतना ऊंचा उठाने की कोशिश करता हूँ ताकि बुराई उस तक ना पहुंच पाए। माने किस तक? मेरी आत्मा तक बुराई नहीं पहुंच पाए। माने अगर किसी ने मेरे संग बुरा किया, ठीक है, आई ट्राई टू रेज माई सोल, मतलब किसी ने मेरे संग बुरा किया, नॉर्मल में आप क्या करोगे? आप उसको एक डांट लगा दोगे, एक थप्पड़ लगा दोगे, आप चाहोगे इसका भी बुरा हो, आपको उसको कुछ नो आपने कुछ उसको क्या बोलते हैं उसको, आपने श्राप दे दिया टाइप्स, उसके बारे में आपने कुछ गंदा बोला। नॉर्मल सोल ऐसा करेगा। जब आप एक हायर सोल होगे, एक अच्छी आत्मा होगे, तो आप क्या करोगे? आप उससे अफेक्ट नहीं होगे। इनफैक्ट आप उसको बोले भगवान इसको सद्बुद्धि दो थोड़ा, ये होगा ना। तो ही इज टेलिंग अस या कि जब भी कोई मेरे संग बुरा करता है तब मैं और ऊंचा अपने सोल को उठाने की कोशिश करता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं उसको रिस्पॉन्ड ही ना करूँ, मैं उसको ब्लेसिंग दूँ कि वो नेगेटिविटी के रिस्पॉन्स में अगर मैंने भी कुछ नेगेटिव बात बोली या उसको कुछ नेगेटिव फीलिंग दी, देन व्हाट इज हैपनिंग? आई एम कमिंग डाउन, आई एम कमिंग बिलो द लाइन। उससे क्या होगा? मेरी लाइफ अफेक्ट होगी, राइट? तो हमको यही करना है। इट इज लाइक इफ यू सी अ बार्किंग डॉग ऑन द स्ट्रीट, व्हाट विल यू डू? टेल मी, व्हाट विल यू डू? यू विल नॉट रिस्पॉन्ड, है ना? आप अपना रास्ता अलग लेके आगे चले जाओगे, है ना? तो कोई हमारे लाइफ में नेगेटिविटी दे रहा है, यू आर नॉट टू रिस्पॉन्ड। आपको अगर रिस्पॉन्ड करना भी है तो इट हैज टू बी अ पॉजिटिव थिंग, उससे हमको अफेक्ट नहीं होना है। दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस एंड इट विल ओनली कम विद प्रैक्टिस। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। मैम, ऐसे आई थिंक गांधी जी का भी एक कोट है, नो वन कैन हर्ट यू विदाउट योर कंसेंट। ओके, यस, दैट इज आल्सो ट्रू। यस, दिस इज अ न्यू वन, मैंने नहीं सुना था ये। नो वन कैन हर्ट यू विदाउट योर कंसेंट। गुड, या लेट्स रीड। Secret to relationships. Life present everything to you so that you can choose what you love. And part of the gift of life is that you are given all kinds of people. So you can choose what you love in those people and turn away from what you don't love. You are not meant to manufacture love for qualities in a person you don't love, but simply turn away without giving them any feeling. क्या? तो वो कह रहे हैं हमारे लाइफ में जो भी आता है वो क्यों आता है? ताकि हम वहां से लव को चूज कर लें। ठीक है, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि लाइफ प्रेजेंट इटसेल्फ लाइक अ कैटलॉग टू अस। हम जिसको एनर्जी देते हैं, हम जिसको चूज फोकस करते हैं, हमने उसको अपने लाइफ में चूज किया है। ठीक है, तो ये जो चॉइस वाली चीज होती है ये गिफ्ट ऑफ लाइफ है। हाँ, एंड ये क्या है? इट इज गिवन टू, बिकॉज हमारे लाइफ में हर तरीके के लोग आते हैं। आपने कभी सोचा है कि आपके लाइफ में इतने सारे लोगों में से यही लोग क्यों आए हैं? माने जैसे आपका जो ड्राइवर है, वो इतने ड्राइवर हैं दुनिया में, वो ही ड्राइवर क्यों आया है? हाँ, इतनी मेड्स हैं, इतनी हेल्प है दुनिया में, वो ही लोग क्यों आए हैं? इतने टीचर्स हैं दुनिया में, आपके लाइफ में वो ही आपकी टीचर क्यों आई थी? क्यों आई थी? बिकॉज कहीं ना कहीं हमारा कुछ ना कुछ उनसे कनेक्शन था, पिछले जन्म में कुछ अकाउंट पेंडिंग था, उसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग आए हैं। अगर हम उस सिचुएशन में वहां पे लव के बजाय अपने उस अकाउंट को बढ़ाते रहेंगे तो क्या होगा? वो नेगेटिव वाला अकाउंट हमको आगे चल के चुकाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि हम इसीलिए आए हैं, इसीलिए वो लोग हमारे दुनिया में आए हैं, सो दैट वी स्टार्ट गिविंग लव टू देम। कहीं ना कहीं कुछ लव का अकाउंट पेंडिंग था एंड वी हैव टू गिव इट बैक।
ओके। अब वो कह रही हैं कितने बार होता है कोई ऐसे लोग आते हैं जिनकी क्वालिटीज हमको अच्छी नहीं लगती हैं, तो व्हाट आर वी सपोज टू डू? हमको उन लोगों की उन क्वालिटीज पे ध्यान नहीं देना है। यू आर सिंपली टू टर्न अवे फ्रॉम व्हाट? टर्न अवे फ्रॉम दैट नेगेटिव क्वालिटी, है ना? ये क्या कह रही है? यू आर नॉट मेंट टू मैन्युफैक्चर लव फॉर क्वालिटीज इन अ पर्सन यू डोंट लव। वो पर्सन वही है, उसमें सब तरीके की क्वालिटी है, लेकिन हमको क्या करना है? हमको उस नेगेटिव क्वालिटी के लिए लव नहीं जनरेट करना है, ठीक है? हमको क्या करना है? उस नेगेटिव क्वालिटी पे ध्यान नहीं देना है, बट सिंपली टू टर्न अवे विदाउट गिविंग देम एनी फीलिंग। उस नेगेटिव क्वालिटी पे हमको कुछ ध्यान नहीं देना है। दिस इज द सीक्रेट टू रिलेशनशिप। तो या अभी तक जो भी आप, जैसे कल आपने लिखा ना, या नहीं लिखा तो आप लिख लेना कि आपको उस पर्सन के अंदर क्या पॉजिटिव क्वालिटी दिखती है। अगर आप पॉजिटिव क्वालिटी के बजाय आप नेगेटिव क्वालिटी पे ध्यान दे रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? यू आर फोकसिंग योर एनर्जी टू दैट नेगेटिव क्वालिटी, एंड वेरेवर एनर्जी गोज इट इंक्रीजेस। वो नेगेटिव क्वालिटी और बढ़ेगी। तो हमको चुपचाप रहना है, उस क्वालिटी को अटेंशन नहीं देना है। या सो दिस इज द टॉप मोस्ट सीक्रेट टू एनी रिलेशनशिप। यस, लेट्स रीड। Turning away from what you don't love in someone means you are relaxed about it and you know life is giving you a choice. It doesn't mean that you argue with them to prove they are wrong, or you criticize or blame them, or that you want to change them because you think you are right. Because if you do any of these things, you are not giving love with time. या तो वो यही कह रही हैं कि अगर हम उस नेगेटिव क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, मतलब हम रिलैक्स्ड हैं, माने आपने चूज किया है कि आपको वो क्वालिटी नहीं चाहिए, राइट? अगर आपने उसको अपनी एनर्जी दी, आपने उस पर अपना ध्यान लगाया कि अरे ऐसे नहीं करना चाहिए, सामान जगह पे रखना चाहिए, तुम हमेशा सामान यहीं छोड़ देते हो, कोई भी नेगेटिव क्वालिटी कि तुम हमेशा जोर से बात करते हो, कभी पढ़ाई नहीं करते हो, एनीथिंग, आप रोज सेम बात बोल रहे हो क्योंकि अभी तक आप उसी नेगेटिव क्वालिटी पे ध्यान देते थे, है ना? अब रॉन्डा बर्न कह रही है कि आपको क्या करना है? उस क्वालिटी पे ध्यान नहीं देना है, या आपको उसको ऐसे समझाना है, ऐसे बात करना है कुछ पॉजिटिव तरीके से जिससे वो थोड़ी मेलो डाउन हो जाए, जो आप कह रहे हो। वो कह रही है इट डजंट मीन दैट यू आर्ग्यू विद देम टू प्रूव दे आर रॉन्ग। माने आप बोलो नहीं यही सही है, यही सही है, ऐसे ही करना चाहिए, दिस व्हाट शी इज सेइंग ना, कि उसको गलत साबित करने में आप लग जाओ क्योंकि आपको लगता है आप सही हो। अगर हम ऐसा कर रहे हैं मतलब हम वहां पे लव नहीं दे रहे हैं बिग टाइम, माने एकदम भी लव नहीं दे रहे हैं। और जहां लव नहीं देते हैं वहां क्या होता है? हमको भी कोई ना कोई क्रिटिसाइज करेगा, ब्लेम करेगा और हमको चेंज करने की कोशिश करेगा। वुड यू लाइक दैट? नो, नो वन लाइक्स इट। एवरीवन वांट्स कि नहीं तुम जो करो भाई एकदम सही है, एवरीवन वांट्स दैट ओनली ना। तो हमको ये ध्यान देना है कि अगर हमको वो रिलेशनशिप इंप्रूव करना है, आप ट्राई करके देखिए, 5 to 10 days आप ट्राई करके देखिए व्हाट दिस बुक इज टेलिंग अस एंड यू विल स्टार्ट सीइंग चेंजेस ना। आपका इंटेंशन क्या होना चाहिए? नॉट टू चेक कि ये जो बोल रही हूँ होगा कि नहीं होगा। आपका इंटेंशन होना चाहिए कि आई वॉन्ट टू इम्प्रूव दिस रिलेशनशिप। ओके, इस इंटेंशन से अगर अपन कुछ करेंगे तभी वो रिलेशनशिप वर्क करेगा, तभी वो ये चीज उसमें इफेक्टिव होगी। क्या Your own soul is nourished when you are kind. It is destroyed when you are cruel. King Solomon, biblical king of Israel, in Proverb 11:17. क्या वो कह रहे हैं? दयालु होने पर आप अपनी ही आत्मा को पोषण देते हैं, निर्मम होते समय आप इसे जहर देते हैं। माने हम जितना ज़्यादा काइंडनेस शो करेंगे, जितना ज़्यादा हम लव शो करेंगे, उतना ज़्यादा हमारी सोल ऊपर 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 बढ़ेगी। ठीक है, सोल ऊपर बढ़ना मतलब आप अपना सुप्रीम पावर से, इस ऑल माइटी से, उससे हमारा कनेक्शन बेटर होगा। जितना अच्छा कनेक्शन होगा उतना ज़्यादा हम अपने पर्पस में आगे बढ़ेंगे, उतना ज़्यादा हम अपनी जर्नी में आगे बढ़ेंगे। और जितना ज़्यादा हम नेगेटिव होएंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, ब्लेम करेंगे, तो आपको फीलिंग कैसी आती है? टेल मी, जब आप गुस्सा करते हो, किसी को डांट लगाते हो, हाउ डू यू एक्चुअली फील? यू फील हैप्पी एंड नाइस? हाँ, जितना भी आप सही हो, कहीं ना कहीं तो अच्छा नहीं लगता है ना? कुछ आपने किसी को डांटा भी, यू वर 100% करेक्ट, बट स्टिल यू डू नॉट लाइक इट। तो वो कह रही है हम You feel low. यू फील लो, यस। वो कह रही है कि हमारी सोल और छोटी होती जाती है। ठीक है, तो वी डोंट वांट दैट इट इज, वो छोटी नहीं, शी इज टेलिंग अस इट इज डिस्ट्रॉयड व्हेन यू आर क्रूअल। माने हमारी सोल जो है वो बोलते हैं ना कि जैसे नहीं बोलते इसकी आत्मा मर गई है, जो क्या यही बोला जाता है ना, जो टेररिस्ट लोग होते हैं या जो किलर्स होते हैं उन लोग के बारे में तो ऐसे ही बोला जाता है ना। क्यों बोला जाता है? बिकॉज दे आर डूइंग द अटमोस्ट बैड थिंग्स सॉरी, जो एकदम भी काइंड नहीं होती है। तो
तो उनके बारे में जब ऐसा बोला जाता है, तो हम किसी नॉर्मल में भी अगर किसी को हर्ट कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं हम हमारी सोल को छोटा करते जा रहे हैं, उसकी लाइट को कम करते जा रहे हैं. ओके, सो लेट्स रीड. When you are on feeling frequency of love, then only people who are on the same feeling frequency as you are can come into your life. क्या तो माने अगर आप चिल्ला रहे हो, आपने किसी को डांटा है, तो क्या होगा, आपके लाइफ में और ऐसे लोग आएंगे जिनको आप डांटो, जिनके ऊपर आप चिल्लाओ, है ना. अगर आपको बिलिंग काउंटर पे ऐसा जन मिला है जो बहुत ही स्लो है, ठीक है, धीरे धीरे, आई एम श्योर आपके लाइफ में ऐसे आए होंगे कभी ना कभी एनकाउंटर्स, वो धीरे धीरे बिल बना रहा है, एक एक टैग ऐसे स्कैन कर रहा है, एंड यू आर इन सच अ रश की 4 आइटम है और इतना टाइम लगा रहा है. तो आपने अगर उसको नेगेटिविटी से रिस्पॉन्ड किया तो क्या होगा. रौंडा बन कह रही है मेरे लाइफ में ऐसे ही लोग आएंगे जो इसी फ्रीक्वेंसी के हैं, ठीक है. सो वी डोंट वांट दैट. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू स्टार्ट गिविंग लव. हाउ डू वी डू दैट? बाय बीइंग kind, by being a little compassionate, by being a little more understanding. तो जब हम ऐसा शो करेंगे तो हमारे लाइफ में ऐसे लोग आएंगे जो और अच्छे होंगे, जो हमारे सेम फ्रीक्वेंसी पे होंगे. एंड दिस इज व्हाट वी वांट. वी वांट पीपल हु आर ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी एज वी आर. या लेट्स सी. You know, some days you feel really happy, some days you feel irritated, and others you feel sad. You can be many different versions of yourself. A person in a relationship with you can also be many versions, including happy, irritated, or sad. No doubt you will have seen them being many different versions, but every version is still that person. When you are happy, then only the happy version of other person can come into your life. But you have to be happy to receive the happy versions of other people. या देखिए कितना ब्रिलियंट है कि हम जैसे भी हैं, आज हमने गुस्सा किया, आज हम रोए, आज हमने चिल्लाया, आज हमने डांस किया, जैसे भी हैं, आई एम स्टिल मी. बट सब मेरे वर्जन्स होते हैं. हम जब मूड हमारा डिफरेंट होता है, बट रहते तो हम इंडिविजुअल वो ही रहते हैं. तो वैसे ही सामने वाला भी होता है ना. अब आप देखिए आज चंद्रमा ही है, मून है, उसके कितने सारे फेजेस होते हैं, है ना. पूर्णिमा होती है, अमावस्या होती है, एक दिन पतला सा होता है, एक दिन हाफ होता है, कितने सारे उसके अंदर वेरिएशंस होते हैं. तो क्या आप उसको कुछ और बोलने लगते हो कि नहीं आज तो मून है, आज तो राहु है, आज तो केतु है, ऐसा तो नहीं बोलते हो आप. वो तो मून ही रहता है, राइट. अब उसकी लाइट की इंटेंसिटी कम ज़्यादा हो रही है, बट है तो वो मून ही. सेम वे सामने वाला पर्सन के भी बहुत सारे वर्जन होते हैं. अगर हम अपना अच्छा वर्जन देते हैं तो सामने वाले का भी अच्छा वर्जन ही आता है ना. इट्स लाइक आपने देखा होगा, लाइक आई एम श्योर यू हैव एक्सपीरियंस दिस इन योर लाइफ, कि एक पर्सन जिसको सब लोग बोलते हैं बहुत खड़ूस है, हो सकता है आपके संग में बहुत ही अच्छे से बात करता हो, हमेशा आपको लगता है मुझे तो नहीं लगता ऐसा, मेरे संग तो हमेशा ही अच्छे से बिहेव करता है ना. तो ये क्यों है? बिकॉज हमने अपना अच्छा वर्जन उसको दिया है, इसीलिए वो हमेशा उसका वर्जन भी हमारे वर्जन में अट्रैक्ट होता है, ठीक है. तो शी इज टेलिंग अस बट यू हैव टू बी हैप्पी टू रिसीव द हैप्पी वर्जन ऑफ अदर पीपल. तो हम जैसा अपना वर्जन दूसरों को दिखाएंगे, वैसा ही दूसरा लोगों का वर्जन हमको दिखाई देगा. तो आप चूज करो कि आपको अपना वर्जन कैसे दिखाना है, वो ही हमारे लाइफ में आएगा. क्या लेट्स रीड. It doesn't mean you are responsible for other people's happiness, because everyone is responsible for their own lives and happiness. What it means is there is nothing else for you to do but to feel happy yourself, and the law of attraction will do the rest. या तुम्हारे हम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम सबको खुश रखें. इट इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज जस्ट मी, है ना. वो यही कह रहे हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हम अपने अच्छे फ्रीक्वेंसी ऑफ लव में रहें, हम उस हैप्पीनेस जोन में रहें, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाकी चीज़ें कर देगा. कैसे करेगा? हम हैप्पी हैं तो सबका हैप्पी वर्जन आएगा. आपने मूवीज़ में ये भी देखा होगा कि एक ना एक बहुत क्या बोलते हैं ना, कि बहुत सारी मूवीज़ में है, इनफैक्ट उसमें भी था, बाहुबली में था क्या, कि एक हॉर्स था, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा था. यू नो, आई डोंट रिमेंबर द मूवी, बट इन मेनी मूवीज वी हैव सीन दिस. कोई उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, हॉर्स को या टाइगर को. लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर इन आवर बॉलीवुड मूवीज. बट जो हीरो जाता है वो पता नहीं क्या करता है कि वो हॉर्स भी टेम हो जाता है, आराम से उसको बैठ के, यू नो, एंड एवरीवन इज क्लैपिंग. तो ये क्या होता है, हम जब उसको अपना अच्छा वर्जन देते हैं तो सामने वाला का वर्जन ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है. दैट इज हाउ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स. बिकॉज हम अगर अपना अच्छा वर्जन दे रहे हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल मेक श्योर कि सामने वाले का भी अच्छा वर्जन सामने आए.
Okay, so we have to choose what are we, choosing for ourselves. Are you choosing happiness? Are you choosing sadness? Because that is what response will come from the other person. Priya, Yes. I want to share something about this line. कल क्या हुआ, मेरे बेटी का PTM मीटिंग था, तो हम जब अटेंड करके बाहर आ रहे थे, तो आई लिव इन दुबई, तो मेरे हस्बैंड ने गूगल मैप लगाया और हम गूगल मैप रॉन्ग साइड शो कर रहा था, तो हम जहां से गाड़ी आनी चाहिए हम वहां से निकाल दिए, सामने से स्पीड में गाड़ी आ रही थी, एंड पुलिस की वैन थी, और वहां पे ये बहुत मेजर मिस्टेक था। और इसमें क्या होता है ना कि अच्छा खासा ब्लैक पॉइंट, अच्छा खासा आपको फाइन लगता है, या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल होने का पूरे चांसेस होते हैं। अब मुझे इतनी टेंशन हो गई थी, मुझे नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, मैंने फटाफट उसको चेंज किया। मेरे हस्बैंड बाहर उतरे और पुलिसमैन के पास जाके बात करने लगे। मैं बाहर भी नहीं गई क्योंकि मैं देखती तो शायद नेगेटिव होती, और मैंने ब्लेसिंग भेजना चालू किया। मैंने बोलना चालू किया कि जो मेरे हस्बैंड उसको समझाएंगे पूरी तरह समझ पाएगा, और वो जो विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी रिएक्शन हम लोग आराम से चले जाएंगे। और एकदम एग्जैक्टली वैसा ही हुआ जो एक्चुअल में कभी होता नहीं है। ओके, वाओ, वेरी नाइस। दैट इज वंडरफुल। यस, तो ये सी आपने उस समय यू चोज टू चेंज योर फीलिंग्स, है ना। वरना नॉर्मल में क्या होता है, हम लोग उसी नेगेटिव में, पता नहीं अब क्या होगा, अब क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा तो बच्चों को कैसे स्कूल छोड़ेंगे, ये क्या करेंगे, वो क्या करेंगे। वी जनरली गो ऑन दैट नेगेटिव स्पाइरल बिकॉज यू चोज टू स्टे, चेंज योर फ्रीक्वेंसी। तो आपका रिजल्ट वैसा ही आया, है ना। कोई सोच नहीं सकता है कि आप पुलिसमैन को समझाओगे दुबई में और वो मान जाएगा, बट हो गया आपके संग। यू चोज टू चेंज द फ्रीक्वेंसी एंड इट शोड द रिजल्ट। वंडरफुल। तो ऐसे ही आपको अपने लाइफ में ऐसे ट्राई करते रहना है, एंड व्हेन यू सी द रिजल्ट्स, आई एम श्योर यू आर गोइंग टू ट्राई इट मोर एंड मोर। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस शेयरिंग। यस, इजी। Happiness depends upon ourselves. Aristotle, Greek philosopher and scientist. वो कह रहे हैं हमारी खुशी हम पर ही निर्भर करती है, माने वी आर द सोर्स ऑफ आवर हैप्पीनेस। माने कुछ भी हमको चाहिए है तो उसका ओरिजिन हमसे ही होता है। अगर आपको अच्छे रिलेशनशिप्स चाहिए, मनी चाहिए है, हेल्थ चाहिए, उस सब का ओरिजिन हम ही हैं। हमको करना क्या है, सबसे पहले हमको खुद को हैप्पीनेस में रखना है, तभी हम स्टार्ट होते हैं, तभी वो हमारे लाइफ में। हम क्या सोचते हैं कि अरे वो मेरे को ऐसा नहीं करने देता, मेरी फैमिली मेरे को सपोर्ट नहीं करती है, मेरी फैमिली मेरे को जॉब नहीं करने दे रही, मेरी फैमिली मेरे को एक्सप्लोर नहीं करने दे रही कुछ। नो, वो सब एक्सक्यूजेस हैं। ओरिजिनली देखिए ना, हर जन के लाइफ में चैलेंजेस आते हैं। जो खुद का स्टैंड लेके आगे बढ़ता है वो आगे बढ़ जाता है, तब वो सेम अनसपोर्टिव फैमिली उसको सपोर्ट करने लगती है। स्टार्ट कहाँ से होता है, वी हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर आवरसेल्व्स, वी हैव टू थिंक ऑफ आवर हैप्पीनेस, देन एवरीवन एल्स स्टार्ट सपोर्टिंग यू। ओके, लेट्स सी। PETs. One way to take the sting out of confrontational or difficult relationships is to imagine people as your own personal emotional trainers. The Force of Love presents you with a whole array of personal emotional trainers disguised as everyday people, but they are all training you to choose love. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्या? PETs, ठीक है, आप उसको पेट्स बोलो, ठीक है, पेट्स बोल सकते हैं ना उसको हम लोग। पेट क्या होते हैं, हमारे लव्ड वंस होते हैं जनरली। अब ये कह रही है पर्सनल इमोशनल ट्रेनर। रोंडा बर्न कह रही है कि अगर हमारे लाइफ में डिफिकल्ट और चैलेंजिंग रिलेशनशिप आते हैं तो उसको अपन सिंपल कैसे कर सकते हैं। आप सोचो, ये पर्सन एक तो ट्रेनर है, ठीक है। ट्रेनर क्या करता है? ट्रेनर क्या करता है? आपको ट्रेन करता है। किस चीज में? मे बी आप चाहते हो कि आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाए, आपकी फिटनेस अच्छी हो जाए, तो वो आपको ट्रेन करेगा, आपके पीछे पड़ा रहेगा। अच्छा, ट्रेनर कौन सा अच्छा होता है? जो डांट लगा के आपको ट्रैक पे ले आता है कि जो सॉफ्ट सा, मेलो सा, क्या बोलो, नहीं आज मेरा मूड नहीं पढ़ाई करने का, बोले अच्छा अच्छा ठीक है बुक बंद कर, जाओ चल के मैं भी खेल। Tough one. हाँ, अ टफ वन, Strict one. स्ट्रिक्ट वन। Yes. स्ट्रिक्ट ट्रेनर क्यों अच्छा होता है? क्योंकि वो रिजल्ट लेके आता है ना, इसलिए अच्छा माना जाता है ना। जो सॉफ्ट ट्रेनर होता है, आप उसको ना, बच्चों के लिए भी आप स्ट्रिक्ट टीचर चाहते हो ना कि डिसिप्लिन में रहें बच्चे, होमवर्क भी कर लें, पढ़ाई भी कर लें, अच्छे बने, राइट। तो क्या होता है, वो रोंडा बर्न कह रही है हमारे लाइफ में जो टफ लोग हैं, जो चैलेंजिंग लोग हैं, जहाँ पे ब्रेकडाउन चल रहे हैं, अगर हम उनको सोचें कि वो मेरे ट्रेनर हैं, पर्सनल इमोशनल ट्रेनर, माने सिर्फ मेरे लिए ट्रेनर है, हो सकता है किसी और के लिए अच्छे होते हो। हाँ, इट्स लाइक सपोज
My mom is strict for me, but she's very soft for my brother. I'm just giving an example. She's same, but she's very soft for my brother, but she's strict for me. तो हम क्या बोलेंगे, मेरे लिए वो ट्रेनर है, हाँ मेरे लिए वो स्ट्रिक्ट है. शी वॉन्ट्स मी टू इम्प्रूव. तो मेरे ऊपर है कि हम क्या करें. तो शी इज टेलिंग अस, हमारे लाइफ में हर तरीके के लोग आते हैं हु आर पर्सनल इमोशनल ट्रेनर्स. ठीक है, एवरीडे पीपल की तरह वो आते हैं. वो पता नहीं चलेगा कि हाँ इतने चलो तुमने ये नहीं किया तो 10 सिटअप करो, तुमने ये नहीं किया चलो तो 10 होमवर्क करो, ऐसा नहीं बोलते हमको. हमारे डेली इंटरेक्शंस में ही वो हमारे की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं. उस समय वो हमको किस लिए ट्रेन कर रहे होते हैं, दैट वी चूज लव. ओके, सो लेट्स रीड क्या करना है उनको. Some people may be soft personal emotional trainers because they don't push you very hard and they are so easy to love. Some people may be tough personal emotional trainers because they push you to your limit, as some personal physical trainers do. But they are the ones who are making you stronger to choose love no matter what. या तो वो कह रही हैं कि कई लोग जो सॉफ्ट होते हैं, माने अगर आप सोचो कि एक सॉफ्ट क्यूट सा स्टफ टॉय है, वो तो सबको ही अच्छा लगेगा, है ना. इट इज इजी टू लव दैट. तो वो आपका सॉफ्ट ट्रेनर हुआ. ठीक है, लेकिन एक डॉल जो थोड़ी सी बैटर्ड है, मे बी इतनी क्यूट नहीं है, माने थोड़ी सी डर्टी हो गई है, उसको तो सब जन प्यार नहीं करते हैं, है ना. नॉट ऑल द किड्स विल गो एंड हग दैट डॉल, प्ले विद इट, राइट. तो वो कह रही है अगर हम उस सिचुएशन में उस डॉल के संग खेलें, उसको चूज करें, तब हम हमारा इसमें हमारी ट्रेनिंग है कि वी आर चूजिंग टू लव दैट पर्सन, जो भी वो हमको जो उतना लव नहीं, माने उतना अट्रैक्टिव टू लव नहीं लग रहा है. ओके, सो दैट इज अ स्ट्रॉन्ग फिजिकल ट्रेनर, पर्सनल इमोशनल ट्रेनर. उस समय अगर हम उसको प्यार दें, तब हमारा रियल ट्रेनिंग होती है. ओके, तो जैसे सेम तरीके से जो इजीली लव लोग होते हैं, माने जो गुस्सा नहीं कर रहे हैं, सॉफ्ट से हैं, क्यूट से हैं, उनको तो बहुत इजीली आप लव कर सकते हो. उनके लिए लव इन द सेंस आप फोर्स ऑफ लव को वहाँ पे यूज कर सकते हो, अपनी पॉजिटिविटी वहाँ यूज कर सकते हो, है ना. जो स्ट्रिक्ट होते हैं, जहाँ चैलेंजिंग सिचुएशन होती है, वहाँ पे आप काम बने रहो, सॉफ्ट रहो, लव चूज करो, वो एक चैलेंज होता है ना. सो शी इज टेलिंग अस, जब भी हमारे लाइफ में कोई चैलेंजिंग लोग आते हैं जो आपको रिएक्ट करने पे मजबूर कर देते हैं ना, कि आपको लगता है कि अरे किसी तरह मैंने अपना गुस्सा कंट्रोल किया, वो हमारे रियल पर्सनल इमोशनल ट्रेनर होते हैं. और उस सिचुएशन में अगर हमने गुस्सा नहीं किया, अगर हम शांत बने रहे, तब हमारा क्या होता है, देन वी आर चूजिंग लव, और वो हमारे को ज्यादा पॉइंट्स देता है. ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि whenever there is a challenging situation, in that moment if you are choosing love, in that moment if you are choosing to remain calm, that is when you are scoring higher for the law of love. Okay, आपको आया समझ में? Yeah, let's read some more. Personal emotional trainers can use all kinds of situations and tactics to challenge you. But the thing to remember is that every challenge is presented, so you will choose love and turn away from negativity and blame. Some trainers may challenge you to judge them or others, but don't fail for that trap. Judgment is negative and it's not giving love. So if you can't love the good in someone or something, simply turn away. या तो वो कह रहे हैं पर्सनल इमोशनल ट्रेनर माने जो टफ वाले होते हैं, वो हमारे लाइफ में कई तरीके के ऐसे सीन्स एंड सिचुएशंस लेके आएंगे जहां हमारे लिए मुश्किल होता है लॉ ऑफ लव, पॉजिटिविटी को चूज करना. ठीक है, होता है ना ऐसा कि कई जन बोले आज तो उसने एकदम हद ही कर दी, ऐसी बातें बोली कि मुझे गुस्सा कंट्रोल ही नहीं हुआ. ऐसे लाइफ में लोग आते हैं ना, बच्चे ने इतनी शैतानी की कि माँ ने मुझे उसे डांटना ही पड़ा, उसे मारना ही पड़ा. ठीक है, तो वो कह रहे हैं क्या कर रहा है वो ट्रेनर, हमारे लाइफ में ऐसी सिचुएशन लेके आ रहा है कि मेरे लिए लव चूज करना बहुत चैलेंजिंग हो जा रहा था. ठीक है, बट हमको उस सिचुएशन में भी लव चूज करना है एंड टर्न अवे फ्रॉम नेगेटिविटी एंड ब्लेम. माने क्या, आपके लाइफ में कोई भी कुछ नेगेटिव बोले, हमको सोचना है कि ये ट्रेनर है, ये मेरा टेस्ट ले रहा है कि कैन आई डू दिस और will I choose negativity or will I fail and choose negativity, will I fail and go below the line. तो वो कह रहे हैं some trainers आपको negativity पे ले जाना पे फोर्स कर देते हैं, कई ट्रेनर्स आपको क्या करते हैं कि आप क्रिटिसाइज करो, आप जज करो, बट हमको उस ट्रैप में नहीं पड़ना है.
बिकॉज ऑल दिस इज टेकिंग यू बिलो द लाइन. हमको सिर्फ लव चूज करना है, और अगर हम नहीं लव चूज कर पा रहे हैं तो हमको उस नेगेटिविटी से टर्न हो जाना है, उस नेगेटिव चीज, उस पर्सन में, उस नेगेटिविटी में. ठीक है, नॉट फ्रॉम दैट पर्सन, बट उस पर्सन की नेगेटिविटी पे हमको ध्यान नहीं देना है. ओके, सो यू हैव टू सी. आपको देखना होगा कि आपके लाइफ में, घर में आपके 4 5 6 जितने भी लोग हैं, कौन सा चैलेंजिंग पर्सनल इमोशनल ट्रेनर है और कौन सा रेगुलर इमोशनल ट्रेनर है. ओके, लेट्स कंटिन्यू. Some trainers may test you by provoking you to feel revenge, एंगर और हेट्रेड. पल्लवी जी, आर यू love देयर? in हाँ. yes. हम्म. Should I again read? Start again. From starting. Yeah. Some trainers may test you by provoking you to feel revenge, anger, or hatred. Turn away by looking for the things you love in life. Some trainers may even hit you with guilt, feelings of unworthiness, or fear. Don't fall for any of them because negativity of any kind is not love. या तो हर जो ट्रेनर होता है वो हमारे लाइफ में दूसरे दूसरे तरीके से हमको नेगेटिविटी चूज करने का ऑप्शन देता है, बट हमको क्या करना है, हमको नेगेटिविटी नहीं चूज करनी है. कैसे करना है ये? शी इज टेलिंग अस टर्न अवे, माने उस नेगेटिविटी से दूर हो जाइए. कैसे? बाय लुकिंग फॉर थिंग्स यू लव इन लाइफ. उन्होंने हमको ये प्रैक्टिस कराई शुरू में कि आप मन में स्टार्ट कर दो, व्हाट डू यू लव, इफ नॉट इन दैट पर्सन, बट व्हाट यू लव इन लाइफ. आप लाइफ में आपको क्या अच्छी चीजें लगती हैं, आप वो मन में सोचना स्टार्ट कर दो. ठीक है, वो बोल रहे हैं, कई ट्रेनर आपको बोलते हैं, अरे तुमने तो ये नहीं किया, तुम कैसी माँ हो, कैसी बहन हो, ये तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हें ये करना चाहिए था. यू आर नॉट टू फॉलो इन दैट ट्रैप ऑल्सो, बिकॉज कोई भी ट्रैप में अगर हम पढ़ रहे हैं, कभी भी हम बिलो द लाइन जा रहे हैं, इट मीन्स वी आर नॉट चूजिंग लव. एंड वॉट आर वी चूजिंग इफ वी आर नॉट चूजिंग लव? हम लोग अंधकार चूज कर रहे हैं, हम लोग हमारे ड्रीम से दूर जा रहे हैं, बिकॉज इट ऑल स्टार्ट विद दैट. ओके, लेट्स रीड. आपको नोटिस करना है. आप देखिए ना कि कीचड़ में भी तो कमल ही उगता है ना. वो अगर वो अपने आप को फिर भी एकदम साफ रहता है, राइट? अगर वो अपने आप को इतना प्योर नहीं रखता, इतना साफ नहीं रखता, तो क्या उसको बोला जाता कि इट इज द मोस्ट फेवरेट फ्लावर ऑफ द भगवान जी? कभी नहीं बोला जाता. रोज को भी अगर आप निकालना चाहते हो तो वो कांटों में ही निकलता है ना? तो क्या करना है हमको? वो लोग जब वहां पे रह सकते हैं ऐसे, तो हम हमारे लाइफ में क्यों नहीं रह सकते? दीज आर आवर लव्ड वंस, है ना? अगर नहीं भी लव्ड वंस हैं तो हम क्यों नहीं वहां पे पॉजिटिविटी चूज कर सकते हैं, राइट? आप रोज को अगर प्लग भी करते हो, आप अपने फेवरेट पर्सन को रोजेस देते हो, क्यों देते हो? बिकॉज वो है ही इतने अच्छे. आप ट्राई करते हो उसके कांटे हटा के उसको दो, राइट? तो वैसे ही हमको हमेशा पॉजिटिविटी चूज करनी है. ओके, सो लेट्स रीड. Hatred paralyzes life, love releases it. Hatred confuses life, love harmonizes it. Hatred darkens life, love illuminates it. Martin Luther King Jr., Baptist minister and civil rights leader. या तो वो कह रहे हैं, नफरत जीवन को पंगु करती है और प्रेम इसे मुक्त करता है. नफरत जीवन में को दुविधाग्रस्त करती है, प्रेम इसे सामंजस्य में लाता है. नफरत जीवन को अंधकारमय बनाती है, प्रेम इसे प्रकाशित करता है. माने ईच टाइम व्हेन वी आर फॉलोइंग फॉर दैट ट्रैप, जो हमारे को इमोशनल ट्रेनर लेके आते हैं, या ये जो लोग हमारे लाइफ में हमको फोर्स कर देते हैं, क्यों हम लोग बोलते भी तो ये ना, अरे उसने ऐसा किया, मुझे तो गुस्सा करना ही पड़ा. मतलब क्या कि हमने लव चूज नहीं किया है, हमने हेट्रेड चूज किया है, हमने नेगेटिविटी चूज की है, और उसका भी ब्लेम हम सामने वाले पे ही लगा रहे हैं. हाँ, आप देखो कैसे ना किसी तरह वी हैव टू चूज लव, बिकॉज उसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है. ओके, लेट्स सी. If you imagine the people in your life as your personal emotional trainers, it will help you with any difficult relationship. It's the tough trainers who make you stronger and determined to choose love no matter what. But they are also पल्लवी जी, have gotten yourself. हाँ. They are telling you that you have gotten yourself onto a negative feeling frequency and you need to feel better to move off it. No one can come into your life and affect you negatively unless you are already on the same negative feeling frequency. If you are on a feeling frequency of love, it won't matter
how tough or negative someone is, they will not and cannot affect you. या तो वो कह रहे हैं, अगर हम हमारे लाइफ में सारे लोगों को ऐसे इमेजिन कर लें कि ये सारे ट्रेनर्स हैं, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे हर रिलेशनशिप में हम उसमें सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। वो कह रही हैं टफ जो ट्रेनर्स आते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारा ज़्यादा टेस्ट लेते हैं। वो हमारा ज़्यादा टेस्ट लेते हैं कैसे, दे फोर्स अस टू चूज लव, है ना। इट्स लाइक लॉन्ग टाइम बैक व्हेन आई यूज्ड टू से माय मॉम इज वेरी स्ट्रिक्ट, वन ऑफ माय फ्रेंड्स सेड, तुम ऐसा सोचो ना, ये तुम्हारी जो मॉम है ना, इट इज लाइक द टफेस्ट क्लाइंट, ठीक है, टफेस्ट क्लाइंट है। तुम जब क्लाइंट्स को हैंडल कर सकते हो, तुम अपनी मम्मा को नहीं करते हो, तो तुमसे कितना प्यार करती हैं। तो आपको लगता था क्या बोल रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि मम्मा को हम क्लाइंट समझ के कैसे कर सकते हैं, क्लाइंट तो टाटा करके घर आ जाते हैं, ठीक है, मम्मा को थोड़ी टाटा कर सकते हैं, ठीक है। तो बट व्हेन आई एम रीडिंग दिस, आई वाज थिंकिंग दैट माय फ्रेंड वाज सो करेक्ट। उसने मेरे को कितनी अच्छी बात बोली थी, सेम चीज ये रॉन्डा बर्न कह रही है। ओके, एंड नाउ आई अंडरस्टैंड इट कि एक्चुअली होता है, जो जितना टफ होता है वो आपका पेशेंस टेस्ट। आप बोलते हो ना कि अरे मेरा ना पेशेंस टेस्ट हो रहा था, कभी बोला है आपने। तो वो कह रही है हमको, अगर हम हर रिलेशनशिप को ऐसा ही सोचने लगे तो वी विल कम आउट बेटर, वी विल कम आउट स्ट्रॉन्गर। हाउ, बाय चूजिंग लव ईच टाइम वी आर अट्रैक्टिंग मोर पॉजिटिविटी। वो कह रही है हम लोग, अगर वो हम लोग नहीं सोच पा रहे हैं, तो एक आप और चीज सोच सकते हो कि जब कोई पर्सन ऐसा चैलेंजिंग टाइप का सिचुएशन लेके आता है, वो कैसे आता है, क्योंकि हमने ही वो चैलेंजिंग सिचुएशन अट्रैक्ट की है बाय बीइंग ऑन दैट फ्रीक्वेंसी। ओके, हम एक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पे थे, इसीलिए वो पर्सन ऐसा नेगेटिव चैलेंज मेरी लाइफ में लेके आया। ओके, शी इज टेलिंग अस, दे आर टेलिंग यू दैट यू हैव गॉटन योरसेल्फ ऑन टू अ नेगेटिव फीलिंग फ्रीक्वेंसी एंड यू नीड टू फील बेटर टू मूव ऑफ इट। ओके, तो अगर हम अपना चैनल नहीं बदलेंगे, अपनी फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज करेंगे, तब वो ही नेगेटिविटी और आती रहेगी मेरे लाइफ में। ओके, तो शी इज टेलिंग अस, नो वन कैन कम इनटू योर लाइफ अनलेस वी कॉल दैट पर्सन और अनलेस वी कॉल दैट फ्रीक्वेंसी, तब तक हमारी लाइफ में वो चीज़ नहीं आ सकती। ओके, और जितना ज़्यादा टफ चैलेंजिंग इंसान होता है, वो जो चैलेंजिंग सिचुएशन लेके आता है, उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारा टेस्ट होता है। आपने एग्जाम में भी देखा होगा, जो छोटे छोटे पॉइंट्स के जो 1-1, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं, वो इजी होते हैं ना। जो टफ क्वेश्चन होता है उसी के ज़्यादा मार्क्स होते हैं, और वो अगर आपने आंसर कर दिया तो आपके मार्क्स अच्छे आने वाले हैं, राइट। तो हमको ऐसे ही लाइफ में भी सोचना है कि जो जितना चैलेंजिंग सिचुएशन होता है ना, वो ही आगे आपको लेके जाता है। आपने ये भी ये सुना है ना कि सोने को भी आग से निकल के वो करना पड़ता है, डायमंड भी तभी बनता है जब उसके ऊपर इतना प्रेशर आता है, राइट। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस एंड लर्न फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स। क्या, जस्ट वन सेकेंड। Each person is just doing their job, just as you are doing your job of being a personal emotional trainer to others. There are no enemies, there are only some great PETs and some tough PETs who are making you great. या, और ये लाइन तो मेरे को बहुत ही अच्छी लगी जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ी थी कि मैं भी तो किसी के लिए ट्रेनर हूँ, है ना, टफ हूँ कि जैसी भी हूँ, आई एम ऑल्सो अ ट्रेनर टू समवन। कोई मुझसे भी डरता होगा, कोई मेरे लिए भी सोचता होगा अरे अभी गुस्सा करेगी, अभी अच्छा शांत रहेगी, यू नो। तो आप सोचो, आप भी किसी के लिए ट्रेनर हो ही, और हर जन हमको कुछ ना कुछ सिखा रहा होता है। शी इज टेलिंग अस देयर आर नो एनिमीज, कोई हमारा दुश्मन है ही नहीं, हर जन हमको कुछ सिखा रहा है। कितने जन बोलते हैं ना कि आप कोई एक चैलेंज से, कोई एक फेलियर से आप सीखते ही हैं, है ना। जब हम उससे सीखते हैं तो तभी तो हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं। या, तो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, दैट एवरीवन हियर इज सपोज टू टीच अस, व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू लर्न। जब तक हम सीखेंगे नहीं, तब तक वो चीज़ हमारे लाइफ में बार बार आती रहेगी। तो कोई यहाँ पे हमारा दुश्मन नहीं है, एवरीवन इज हियर जस्ट टू टीच अस। Law of attraction is a sticky business. The law of attraction is a sticky business. When you rejoice in another person's good fortune, their good fortune sticks to you. When you admire or appreciate anything about another person, you are sticking those qualities to yourself. But when you think or discuss negative things about someone else, you are sticking those negative things to you too, and you are putting them into your own life. या, तो रॉन्डा बर्न कह रही है आकर्षण का नियम चुंबक की तरह चिपकता है, ठीक है। माने कैसे, क्या कह रही है वो, कैसे चिपकता है कि अगर हम किसी और के गुडनेस में, हैप्पीनेस में, सक्सेस में खुश होते हैं,
तो क्या करते हैं हम, उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। किसको? वो गुडनेस को, हैप्पीनेस को, सक्सेस को, काइंडनेस को, उसके जो भी अचीवमेंट्स हैं उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। व्हेन यू एडमायर और अप्रिशिएट एनीथिंग अबाउट अनदर पर्सन, माने अगर हमने उसकी कोई पॉजिटिव क्वालिटी भी अप्रिशिएट की, तो भी हम उसको अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। कैसे? मे बी वो क्वालिटीज मेरे अंदर भी आने लगेंगी। ऐसा होता है ना कि लाइक आपने सुना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है ठीक है, राइट? तो अगर हम किसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं तो वो क्वालिटीज मेरे में आएंगी। सेम अप्लाइज टू द रिवर्स ऑल्सो, वो भी यही कह रही है। अगर हम किसी की नेगेटिविटी डिस्कस कर रहे हैं तो उसको भी तो अट्रैक्ट करेंगे ना, बिकॉज वी आर अ मैग्नेट टू वट एवर वी आर टॉकिंग एंड वट एवर वी आर थिंकिंग अबाउट। तो अगर हम किसी की अच्छाई अप्रिशिएट करेंगे और वो मेरे पास आ जाएगी, तो डोंट यू थिंक इट इज सो नाइस दैट वील से वाओ कियारा अली वाज लुकिंग सो नाइस, हर स्किन इज ग्लोइंग। आप वही बोलोगे ना, राइट? उसकी पॉजिटिविटी पे हम ध्यान देंगे तो वो पॉजिटिविटी हम अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने बोला ना कि जहां भी देखो सिर्फ वही चीज देखो जो आपको अच्छी लगती है, सिर्फ उसी पे ध्यान दो। अगर हम नेगेटिविटी पे ध्यान दे रहे हैं तो हम उसको भी अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। यस जी। The law of attraction is responding to your feelings. Whatever you give, you receive. And so, if you stick a label on any person, circumstance, or event in a life, you are sticking the label on you, and that's what you will receive. या तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज रिस्पॉन्डिंग टू योर फीलिंग्स, माने हम जिस चीज को फीलिंग दे रहे हैं, हम जिस चीज पे अटेंशन दे रहे हैं, अपनी फोकस दे रहे हैं, वो ही हमारे लाइफ में आएगा। वो कह रही है अगर हमने किसी चीज को देखा और उसको लेबल दिया, हम लोग देते हैं ना कि बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत खूबसूरत लड़की थी, या बहुत गंदी पिक्चर थी, गंदी इन द सेंस लाइक बहुत ही बेकार सी पिक्चर थी। तो अगर हम इस तरीके के दूसरे लोगों को कुछ ना कुछ एडजेक्टिव दे रहे हैं, वो अच्छे हैं तो हमारे लाइफ में अच्छी चीजें आएंगी, दे विल कम एंड स्टिक टू अस। अगर हम गंदे एडजेक्टिव्स दे रहे हैं, गंदे लेबल्स दे रहे हैं, तो वो भी मेरे लाइफ में आके आएंगे, बिकॉज दैट इज हाउ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। कि माने जिसको हमने फीलिंग दी, हमारे मन में दिन में 60 to 70,000 थॉट्स आते हैं, ठीक है? जिस थॉट को हमने एनर्जी दी, जिस थॉट को हमने और ज्यादा फीलिंग दी, वो ही हमारे लाइफ में आएगा। ओके, रैंडम जो माने कुछ भी थॉट्स आते रहते हैं जिसको हमने कुछ फीलिंग नहीं दी, वो नहीं आएंगे मेरे पास। जहां पे मेरा ध्यान अटका, जहां पे हमने थोड़ी सी और अटेंशन दी, वो मेरे लाइफ में वापस आएगा। ओके, सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड वट एवर यू गिव, यू आर रिसीविंग बाय द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट यू आर फोकसिंग ऑन दैट। या Now, this is a fantastic news because it means you can stick everything you love and want you by looking for the things you love in other people and saying yes to them with all of your heart. The world is your catalog, and when you understand the power of your love, it is full-time job noticing everything you love in other people. But it's the easiest and best way to change your whole life. It beats struggle and suffering. All you have to do is notice the things you love in other people and turn away from the things you don't, so you don't give them any feeling. How easy is that? या तो वो कह रही है इजंट इट ग्रेट कि आपको जो अच्छा लग रहा है बस आप उसी पे ध्यान दो। माने जो पर्सन है, उसकी जो क्वालिटी आपको अच्छी लग रही है, सिर्फ उसी पे फोकस करो, ठीक है? तो क्या होगा, हमारे लाइफ में वैसी ही चीजें आएंगी। शी इज टेलिंग अस द वर्ल्ड इज योर कैटलॉग, माने हम कुछ भी चूज कर सकते हैं, तो क्यों ना हम उसी चीज को चूज करें जो हमको अपने लाइफ में चाहिए, है ना? एंड इट इज लाइक इट इज अ फुल टाइम जॉब, माने हम पूरा दिन बिता सकते हैं सिर्फ वो चीजें देखने में जो हमको अच्छी लगती हैं, है ना? इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि ये मेरे पास नहीं है, वो ऐसा क्यों नहीं करता है, ऐसा क्यों करता है, यू नो, कुछ भी नेगेटिव डिस्कस करने के बजाय वी शुड बी फोकसिंग ऑन द गुड थिंग्स, वी शुड बी फोकसिंग ऑन द थिंग्स वी लव, ठीक है? वो कैसे करना है? शी इज टेलिंग अस जस्ट उन्हीं चीजों को नोटिस करिए जो हमको अच्छी लगती है, और वो क्वालिटी जो हमको अच्छी नहीं लगती है उस पर्सन के अंदर, उस पर ध्यान मत दीजिए। ओके, शी इज टेलिंग अस व्हेनेवर यू आर रीडिंग दिस ना, टर्न अवे फ्रॉम द थिंग्स यू डोंट लव। माने टर्न अवे मतलब उस इंसान से नहीं दूर होना है ना? उस इंसान की नेगेटिव चीजों पे ध्यान नहीं देना है, उस इंसान की अच्छी क्वालिटी पे ही ध्यान देना है। एंड दैट इज व्हेन योर लाइफ विल स्टार्ट टर्निंग अमेजिंग। ओके, दैट इज व्हेन योर रिलेशनशिप विल स्टार्ट टर्निंग अमेजिंग, ठीक है? तो डोंट यू थिंक इट इज ईजी? सो लेट्स स्टार्ट दिस एंड मेक आवर लाइफ मोर अमेजिंग। आप सोचो नहीं अब तो मुझे बस उसकी पॉजिटिव चीजों पे ही ध्यान देना है, कि उसकी स्माइल कितनी अच्छी है, कि वो बातें कितने अच्छे से करता है ना, कितना उसके क्लोथ्स कितने अच्छे हैं। देयर आर एंडलेस थिंग्स दैट यू कैन थिंक ऑफ। ओके, सो लेट्स रीड जस्ट वन सेकेंड।
या अब हाँ, नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी गुड. Taking the first footstep with a good thought, the second with a good word, and the third with a good deed, I entered paradise. Book of what अर्धा is this विराफ. book? अर्धा Ardha विराफ. Ardhavira, हाँ. Zoroastrian religious text. या अब देखिए वो क्या कह रहे हैं. अच्छे विचार के साथ पहला कदम उठाकर, अच्छे शब्द के साथ दूसरा कदम उठाकर और अच्छे काम के साथ तीसरा कदम उठाकर मैं स्वर्ग में दाखिल हो गया. माने क्या है? व्हाट यू थिंक? आपको ये गीता टाइप की फीलिंग नहीं आ रही? पहले अच्छा विचार, अच्छे शब्द, फिर अच्छा कर्म. ठीक है. देन आई एंटर्ड पैराडाइज. पैराडाइज मतलब क्या होता है? जहां पे आपके मन चाही सारी चीजें हैं, है ना. पैराडाइज मतलब तो यही है ना. हर जन का पैराडाइज एक डिफरेंट है, राइट. आप किसी मम्मी से पूछोगे डिफरेंट पैराडाइज है, लड़के से पूछोगे एक डिफरेंट पैराडाइज है, हर जन का पैराडाइज डिफरेंट है. तो जो मेरा पैराडाइज है उसमें पहुंचने के लिए, पैराडाइज मतलब हमारा मन चाहा, हमारा डिजायर, हमारी ड्रीम, उस तक पाने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है? थॉट, गुड थॉट. देन अ गुड वर्ड, माने जब हमारे थॉट अच्छे होंगे तभी हमारे शब्द अच्छे होंगे, और जब शब्द अच्छे होंगे तो हमारे कर्म भी अच्छे होंगे, एंड देन वी विल अचीव आवर ड्रीम. ओके. और ये रिलेशनशिप के में उन्होंने कह रहा है, ड्रीम में कहाँ से आ गया रिलेशनशिप में, आप बताइए ये. बट हर चीज का ओरिजिन ये है. इट ऑल स्टार्ट्स विद अ गुड थॉट, देन इट कंटिन्यूज विद द वर्ड्स, देन इट कंटिन्यूज विद द एक्शन. या Gossip is tricky too. या तो Gossip कई जन, जस्ट वन सेकंड, कई जन सोचते हो ना गॉसिप, गॉसिप क्यों गलत है? उसमें तो हमको अच्छा लग रहा है. गॉसिप अगर अच्छी है कि नहीं है, हम लोग इसके बारे में बात करते हैं. वो रॉन्डाबन कह रही है आलोचना भी चुंबक की तरह चिपकती है. आप सबने गॉसिप करी है, करते हैं. यस. आई मीन आई वाज स्मॉल ना, देयर वाज वन रिलेटिव ऑफ माइन हु बोलती हम लोग बुराई थोड़ी कर रहे हैं, हम लोग निंदा रस कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं. सामने वाले को दुख थोड़ी पहुंचा रहे हैं. एंड because we knew it is not right, हाँ. but when she used to say ना हम लोग निंदा रस कर रहे हैं, हम लोग हाँ कुछ बुराई थोड़ी कर रहे हैं, हम लोग निंदा रस कर रहे हैं, विच इज रस भगवान जी ने बनाई ये सारी चीज. ठीक है. बट लेटर ऑन वी अंडरस्टूड ऐसा कुछ नहीं है. हम उसको चाहे कुछ भी नाम दे दें, गॉसिप इज गॉसिप, इट इज बैड. क्या लेट्स रीड. Gossip seems harmless on the surface, but it can cause a lot of negative things in people's lives. Gossip is not giving love, gossip is giving negativity, and that's exactly what you receive back. Gossip is not harmful to the person who is being spoken of, gossip harms those gossiping. तो आप बताइए क्या बोल रही हो? एकदम ठीक बोल रहे हैं कि हमको लगता है कि गॉसिप हार्मलेस है, इट सीम्स हार्मलेस ऑन द सरफेस, लेकिन वो किसको नुकसान दे रही है? जो गॉसिप कर रहा है. बिकॉज गॉसिप हमेशा बिलो द लाइन की होती है. जो चीज आप किसी के सामने उस पर्सन से नहीं बोल सकते, वो अगर आप पीछे कह रहे हैं तो इट इज बैड. ओके. सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू ओनली स्पीक पॉजिटिव, और गॉसिप तो करना ही नहीं. एकदम कोई कर रहा है तो अगर आप, अच्छा वो भी बताएंगे. हाँ, लेट्स रीड. When you're talking with a family member or a friend and they tell you about some negative thing that someone said or did, they are gossiping and they are giving out negativity. As you listen to them, you are giving out negativity too because you are feeling vain and you can't hear negative things without your feelings dropping rapidly. When you talk with a work colleague at lunch and you both talk negatively about someone, you are gossiping and you are giving out negativity. You can't talk about or hear negativity and have good feelings. या तो बिल्कुल यही कह रहे हैं कि कोई भी फैमिली, अगर हम किसी जन से बात कर रहे हैं और वो किसी थर्ड पर्सन के बारे में कुछ नेगेटिव बात कर रहा है, इट मीन्स गॉसिपिंग. और वो नेगेटिविटी दे रहे हैं, और अगर हम सुन रहे हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, ठीक है, तब क्या हो रहा है? हमारी फीलिंग्स तो चेंज हो जाती हैं, है ना. अगर हमारी फीलिंग्स चेंज हुई तो क्या हुआ? हम बिलो द लाइन चले गए. हम बिलो द लाइन चले गए तो क्या हुआ? हम अपने लाइफ में वैसी ही चीजें अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो अगर हम सुन भी रहे हैं, कुछ नहीं बोला आपने, आप सुन भी रहे हो, तो भी आपकी फीलिंग्स तो चेंज हो ही नहीं है ना. अपन न्यूज देखते हैं, अपन उसमें कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, बट हमारी फीलिंग तो चेंज होती है ना. तो शी इज टेलिंग अस दैट इज व्हाई गॉसिपिंग इज बैड. वी शुड नॉट बी गॉसिपिंग. अगर हमने किसी के बारे में सुना, बोला, कुछ भी किया जो सही बात नहीं है, तो हम बिलो द लाइन जा रहे हैं और अपने लाइफ में वैसी चीजें अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो आप पूछोगे क्या करना है? रॉन्डाबन विल टेल अस. लेट्स रीड.
So, to put it frankly, we need to be mindful of not sticking our nose in other people's business because their business will get stuck on our nose. Unless you want it in your life, turn away from it without feeling anything. You will not you will not only be doing yourself a favor, but you will also be doing the other people's a favor who don't realize the negative effect gossip can have on their lives. या तो माने हमको दूसरों के काम में टांग नहीं अड़ाना है। वो क्या करें, दूसरों के काम में अगर हम अपनी नोज डाल रहे हैं, ठीक है, नोज डाल रहे हैं मतलब वी आर पुटिंग आवर नोज इन देयर बिजनेस, या माने क्या हुआ, हमारे नोज में वो चीज चिपक जाएगी। दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग ना, बिकॉज देयर बिजनेस विल गेट स्टक ऑन आवर नोज, या तो हमको ये नहीं करना है। जब तक हम वो चीज अपने लाइफ में नहीं चाहते हैं, हमको उस बारे में बात नहीं करना है, ठीक है। वी हैव टू टर्न अवे फ्रॉम इट विदाउट फीलिंग एनीथिंग। माने आपको ये ट्राई करना पड़ेगा कि, एंड इट विल ओनली कम विद प्रैक्टिस, ओके। आई एम नॉट सेइंग हम करते नहीं करते। अब देखिए, आई विल जस्ट गिव यू वन टिप इन दिस आल्सो, कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपका टिपिंग पॉइंट क्या है, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। अगर आपने बाय चांस गॉसिप कर भी ली, ठीक है, 2 मिनट 3 मिनट कर ली, देन यू सेड नहीं, लेकिन वो कितनी अच्छी है, शी डोंट विल ओनली टेल अस, मैंने कुछ नहीं इन्वेंट किया, शी विल ओनली टेल अस। बट आपको ध्यान रखना कि आपकी फीलिंग 51 to 60% टाइम्स अबाउट द लाइन रहनी है, ओके। हमको उसके काम में कुछ ध्यान नहीं लगाना। एंड शी इज टेलिंग अस, अगर हम गॉसिप नहीं करते हैं तो सामने वाला करेगा। अगर आपको किसी की चीज में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, वो नहीं बात करेगा आपसे, है ना। देयर आर सम पीपल, आपको इंटरेस्ट आता है, यू लाइक टू गॉसिप, दैट इज व्हेन दे आल्सो स्टार्ट गॉसिपिंग विद यू। आप उनसे बात ही नहीं करोगे तो वो लोग भी कुछ नहीं बोलेंगे, ओके। तो शी इज टेलिंग अस, अगर हम बात नहीं कर रहे हैं तो हम सामने वाले के लाइफ में भी नेगेटिविटी को दूर हटा रहे हैं, okay। She's telling us you are doing them a favor by keeping them away from the negative effect of gossip. Yeah. If you find yourself gossiping or listening to gossip, stop mid sentence and say, "But I am so grateful that," and finish the sentence with something good about the person being gossiped about. Yeah, तो आप समझ गए क्या करना है, कि बोला कि पता है तुमने देखा नेबर की बेटी कैसे कपड़े पहनी हुई थी, आपने सपोज बोल दिया या सुन लिया ये, तो आप बोलोगे लेकिन तुमने देखा है शी सो ब्लेस्ड, कितना अच्छा फिजिक था उसका, कितने अच्छे से वर्कआउट करती है। तो आपने क्या किया, यू सेड समथिंग पॉजिटिव अबाउट दैट पर्सन, ओके। तो कोई भी इस तरीके की बात हो रही है, यू हैव टू स्टॉप मिड सेंटेंस। आपको ये नहीं कि पूरी 1 घंटा आपने कर ली बिचिंग, फिर आपने लास्ट में बोला नहीं लेकिन कितनी फिट थी वो, ये नहीं। उसी समय आपको ध्यान आ जाएगा कि अरे ये गलत है, और उसी समय आपको ये लाइफलाइन यूज करनी है, विच वॉज अगेन इन द मैजिक बुक, कि कुछ आपने गलत बोला तो यू हैव टू यूज दिस मैजिक लाइफलाइन टू नलीफाई द नेगेटिविटी दैट यू आर अट्रैक्टिंग इन योर लाइफ। अच्छा, आप बताइए आपको क्या लगता है कितने लोग, कौन से लोग गॉसिप करते हैं? आपको लगता है 95% ऑफ जनता गॉसिप करती है कि 5% ऑफ जनता गॉसिप करती है? मैक्सिमम। तो वो मैक्सिमम लोग की लाइफ कैसी है? According to the person, Yeah, what did you say? हाँ, अकॉर्डिंग टू द पर्सन। पल्लवी जी, आप क्या कह रहे थे? जो पर्पसलेस लाइफ लीड करते हैं वो जनरली गॉसिपिंग ज्यादा करते हैं। दे डोंट हैव एनी मोटिव टू डू, सो दे विल जस्ट आया दिन कैसे, हाउ टू स्पेंड इट लाइक lightly and casually. Those people, then they get a time na to see here and there what's going on. नहीं, जिनका फोकस होता है, जिनका पर्पस होता है, दे विल नॉट गॉसिप। आप इमेजिन कर सकते हो रतन टाटा गॉसिप कर रहे हैं, अंबानी गॉसिप कर रहे हैं, दे हैव टाइम टू डू गॉसिप। नरेंद्र मोदी जी गॉसिप कर रहे हैं बैठ के, हाँ, नो, दे आर बिजी इन देयर लाइफ। इसीलिए वो लोग कहाँ पहुंच गए हैं। तो अगर हम भी कहीं पहुंचना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बी अबाउट दिस 95% ऑफ जनता, इफ यू वांट टू कम इन दैट 10% ऑफ द ब्रैकेट दैट रॉन्डा ने बोला ना, कि जिनके पास मैक्सिमम मनी ऑफ द वर्ल्ड है, अगर हम वहां जाना चाहते हैं तो हमको पहले तो ये गॉसिप नेगेटिविटी से दूर रहना है, ठीक है। कोई अगर आपसे बोल भी रहा हो ना, छोड़ो ना, कि हम लोग को क्या फर्क पड़ता है, देखो कितना अच्छा मौसम है, तुरंत आपको बात बदलनी है, ठीक है। छोड़ो ना, हमारी लाइफ में क्या फर्क पड़ता है कि उसने, आगे मत बोलिए, हम लोगों को क्या फर्क पड़ता है। लेट्स मूव ऑन, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। कितना टेस्टी खाना खाया, क्या खाया आज तुमने, आपको बात बदलना होगा। If you want to attract positivity in your life, to attract the life of your dreams, you have to take steps.
शुरू में हो सकता है चैलेंजेस हुए, ठीक है। अब इससे कई कई लोग होते हैं, उनकी बात आपको सुननी पड़ेगी। जैसे क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं, अगर उनको अच्छा लगता है कुछ गॉसिप करना या बोलना, तो आप 2-3 बार सुनिए, ठीक है, और बस उसमें आप कंट्रीब्यूट मत करिए, वो खुद ही आपके संग गॉसिप नहीं करेंगे, है ना। अगर आपको शाहरुख खान अच्छा लगता है सपोज, हाँ, तो जिसको अच्छा नहीं लगता है आप उससे बात करोगे उसके बारे में? नहीं करोगे। आपको पता चल जाएगा 1-2 बार बोल के कि इसको शाहरुख खान पसंद नहीं है और वो कुछ उल्टा बोलेगा तो यू वुड नॉट लाइक टू लिसन, या तो क्या होगा, आपको भी समझ में आ जाएगा या सामने वाले को भी समझ में आ जाएगा कि इसको गॉसिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर वो आपसे बात कर उसके बारे में नहीं करेगा। सो यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग दीज स्टेप्स सो दैट यू स्टॉप this negativity in your life and move towards positivity. Okay, let's continue. If a man speaks or acts with an evil thought, pain follows him. If a man speaks or acts with a pure thought, happiness follows him, like a shadow that never leaves him. Gautam Buddha. क्या, तो गौतम बुद्धा कह रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति किसी बुरे विचार के साथ बोलता या काम करता है तो दुख उसका पीछा करता है। यदि कोई व्यक्ति किसी अच्छे विचार के साथ बोलता या काम करता है तो खुशी उसके पीछे पीछे आती है, उस छाया की तरह जो उसे कभी नहीं छोड़ती। सो वी हैव टू चूज व्हाट काइंड ऑफ अ शैडो वी वांट। डू वी वांट हैप्पीनेस फॉलोइंग अस? डू वी वांट सक्सेस फॉलोइंग अस? डू वी वांट लव फॉलोइंग अस, रिस्पेक्ट, केयर? अगर हम ऐसा चाहते हैं तो हमको क्या करना है, एक अच्छे थॉट के संग फॉलो करना है। आज ही मैंने ग्रुप में एक तो वो शेयर किया था, इट वाज ऑल अबाउट दैट, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट समवन, इट हैज टू, इफ यू हैव टू चेक इट, इफ इट इज इट काइंड, इज इट गुड, देन ओनली वी शुड टॉक अबाउट समवन एल्स। ओके, तो आप देखो कि आप इसी तरीके से बात करो लाइफ में। ओके, जस्ट वन सेकंड, लेट मी सी योर, we'll just see how long this topic is. Okay, should we read? It's 2 pages. पढ़ लें या? ओके, चलिए पढ़ लेते हैं। Your reaction chooses it. Your reaction chooses it. Life is presenting every person and circumstance to you, so you can choose what you love and what you don't love. When you react to anything, you are reacting with your feelings, and as you do, you are choosing it. Your reaction, whether good or bad, sticks it to you, and in effect, you want more of it. And so it's important to watch how you react in your relationships, because whether you react with a good or bad feelings, they are the feelings you are giving, and you will receive more of the same circumstances to make you feel that way. या तो माने हमारे लाइफ में जो चीजें आ रही हैं, हमारा रिएक्शन डिसाइड करता है कि वो मेरे लाइफ में वो चीज को हमने अट्रैक्ट किया है कि नहीं किया है, ठीक है। शी इज अगेन एंड अगेन टेलिंग अस दैट लाइफ इज लाइक अ कैटलॉग। हमारे लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसको अगर अपन एनर्जी देते हैं, उस पर अगर मेरा ध्यान अटक के हमने उसके कुछ ऊपर कमेंट किया, तब वो मेरे लाइफ में आता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें लाइफ में आ रही हैं, जा रही हैं, बहुत कुछ होता है। आप शॉपिंग भी जाते हो, इतने कपड़े टंगे होते हैं, बट आपका जहां ध्यान अटकता है उसी को तो आपने चूज किया ना। तो वैसे ही लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छी चीजें, गंदी चीजें, किसी के नेगेटिव क्वालिटीज, किसी के पॉजिटिव क्वालिटीज, अगर हम उस पर ध्यान देते हैं, अगर हमने उस पर रिएक्ट किया, देन ओनली वी आर चूजिंग इट टू कम इन टू आवर लाइफ। ओके, सो क्या इंपॉर्टेंट है कि हम हमारे रिलेशनशिप्स में कैसे रिएक्ट करें। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ बोला, किसी की कोई क्वालिटी है, उस पे अपन कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। अच्छी फीलिंग्स दे रहे हैं तो हमारे लाइफ में अच्छी चीजें आएंगी उस रिलेशनशिप में। कुछ नेगेटिविटी दे रहे हैं तो वो नेगेटिविटी और बढ़ेगी हमारे लाइफ में। ओके, क्या? If a person says or does something and you find yourself feeling upset, offended, or angry, do your best to change the negative reaction right away. Simply being aware that you have reacted negatively takes the power out of the negative feeling immediately and can even stop them. But if you feel as though the negative feelings have a grip on you, it is best to walk away and spend a couple of minutes looking for the things you love one after the other until you feel much better. You can use anything you love to make you feel better, like listening to your favorite music, imagining the things you love, or doing something you love.
You can also think about the things you love in the person who upsets you. This might be challenging, but if you can do it, it is the fastest way to feel better. It's also the fastest way to become the master of your feelings. या तो देखिए जो हमारे लाइफ में होता है वो बिल्कुल वही कह रही है कि अगर किसी पर्सन ने कुछ ऐसा किया जो हमको दुख दे रहा है, हमको गुस्सा दिला रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो हमको हमारा बेस्ट एफर्ट करना है कि हमारा नेगेटिव रिएक्शन चेंज हो जाए। ठीक है, यू डू योर बेस्ट टू चेंज द रिएक्शन, नेगेटिव रिएक्शन राइट अवे। अगर हमको फील हो रहा है कि मेरे को गुस्सा आने वाला है, ठीक है, तो शी इज टेलिंग अस, उसी से हमारे लाइफ में वो नेगेटिविटी आना कम हो जाती है। कि हमको फील हो रहा है कि अरे हमको गिल्ट हो रहा है, अगर हमको कुछ भी नेगेटिव आ रहा है, लाइक यू आर अवेयर, है ना, कितने जनों तो पता ही नहीं चलता है, गुस्से से रिएक्ट कर देते हैं, पता ही नहीं चलता है कि वो सैड हो जाते हैं। इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग, इफ यू आर अवेयर दैट यू आर नॉट पॉजिटिव अबाउट दिस, आपका कुछ रिएक्शन निकलने वाला है, उसी समय हम उसको स्टॉप लगा सकते हैं, है ना। तो है ना, अगर हम लोग को पता है कि सिग्नल आ रहा है और हमको ब्रेक लगाना है तो हम कर देते हैं, हम ध्यान ही नहीं देते तो अपन सिग्नल तोड़ देते हैं, है ना। तो शी इज टेलिंग अस लाइक दिस दैट व्हेन यू आर अवेयर देन यू कैन पुट अ स्टॉप ऑन इट। और अगर आपको लगता है कि आप उसको स्टॉप नहीं कर पा रहे हो अपने नेगेटिव रिएक्शन को, तो शी इज टेलिंग अस वॉक अवे फ्रॉम इट। ठीक है, आप बोलोगे नहीं मैं अभी बाहर से आ रही हूँ, मेरे को बहुत अर्जेंट कॉल आ गया है, ठीक है, मेरे को देखना है कि अरे किचन में कुछ ऑन तो नहीं छूट गया गैस के ऊपर, आपको कुछ भी बहाना बोल के वहां से हट जाना है। दिस व्हाट शी इज टेलिंग अस। बट इफ यू फील एज दो द नेगेटिव फीलिंग्स हैव अ ग्रिप ऑन यू, माने आप रिएक्ट करोगे ही नेगेटिवली, तो यू हैव टू लीव दैट स्पेस। इफ यू कांट जिप योर माउथ, यू फील लाइक रिएक्टिंग, जस्ट गो अवे फ्रॉम देयर। ठीक है, वो बोली स्पेंड अ कपल ऑफ मिनट्स। आप बोलो अरे बहुत जोर से पेट में गुड़गुड़ हो रही है, आप टॉयलेट चले जाओ, ठीक है, फोन में अपना कुछ व्हाट्सएप में देखने लगो, कुछ भी करो, बट मूव अवे फ्रॉम दैट प्लेस। या तो और क्या करना है, शी इज टेलिंग अस चूज समथिंग दैट यू लव, जो करके आपको अच्छा लगने लगे, जिससे आपकी फीलिंग चेंज हो जाए। ठीक है, आपको बॉदर नहीं करना है कि सामने वाला क्या सोचेगा। What are you interested in? You should be interested in your relationship, in your life, in your positivity. तो उसके लिए जो भी करना है, जैसे बोलते हैं ना साम दाम दंड भेद, जो भी यूज करना है वो करके आपको पॉजिटिविटी में रहना है। शी इज टेलिंग अस आप मन में अपना ध्यान कर सकते हो कि क्या क्या चीजें आपको अच्छी लगती हैं, आप गाना सुन सकते हो, आप किसी को फोन कर सकते हो, आपने कोई अच्छा सा कॉमिक देख लिया या अपनी फोटोग्राफ्स देख ली, सेल्फी क्लिक करने लगो बाथरूम में जाके, माने कुछ भी करो, बट वहां से आपको हट जाना है जहां पे आप अपने नेगेटिविटी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। शी इज टेलिंग अस अनदर एग्जांपल, यू कैन आल्सो थिंक अबाउट द थिंग्स यू लव इन द पर्सन हु अपसेट यू, व्हिच आई हैव डन एंड आई फील इट इज अ ब्रिलियंट वे। आप वही करो, आप ऐसा लगे कि आपके कान बंद हैं और आप जस्ट देख रहे हो। कितने जन होते हैं ना, सिर्फ ब्लैंक स्टेयर करने लगते हैं, यू हैव सीन इन योर लाइफ, कि आप उनको कुछ बोल रहे हो लेकिन लगता है कि उनके कान में नहीं जा रही कुछ बात। यू ऑल्सो हैव टू स्टार्ट बीइंग लाइक दैट, ओके, कि सामने वाला कुछ बोल रहा है, आपके कान के अंदर वो बात नहीं जा रही, जैसे बोलते हैं ना उसके कान पे जू नहीं रहेगा। आई डोंट नो कहाँ से मेरे को बचपन के सारे हिंदी के मुहावरे याद आ जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा आपको फील करना है दैट यू आर नॉट अफेक्टेड, चिकने घड़े की तरह आप हो जाइए। सी अनदर मुहावरा, आई डोंट नो कैसे आ रहे हैं ठीक है, तो ऐसे हो जाना है और आप देखोगे कि आपके रिलेशनशिप अच्छे होने लगेंगे, बिकॉज अनटिल एंड अनलेस यू रिएक्ट, कुछ गड़बड़ होगा नहीं, आप चुप हो, है ना, आपको यू शुड ओनली बी बॉदर्ड अबाउट योरसेल्फ। आप देखना, यू ट्राई दीज थिंग्स एंड सी द चेंजेस हैपन इन योर लाइफ। ओके, लेट्स कंटिन्यू। A man who is master of himself can end a sorrow as he can invent a pleasure. I don't want to be at the mercy of my emotions. I want to use them to enjoy them and to dominate them. Oscar वाइल्ड, हाँ, Wilde, ऑस्कर, या ऑस्कर वाइल्ड, या Oscar Wilde, author and poet. क्या, तो ऑस्कर वाइल्ड कह रहे हैं जो व्यक्ति अपना स्वामी है वह किसी दुख का अंत उसी तरह कर सकता है जिस तरह वह किसी खुशी का आविष्कार कर सकता है। मैं अपनी भावनाओं की दया पर नहीं रहना चाहता, मैं तो उनका इस्तेमाल करना चाहता हूँ, आनंद लेना चाहता हूँ और उन पर हुक्म चलाना चाहता हूँ। रॉन्डा बर्न बोल रही है, इट इज द फास्टेस्ट वे टू बिकम द मास्टर ऑफ योर फीलिंग्स। व्हाट इज द फास्टेस्ट वे? अगर हम रिएक्ट करते हैं, मतलब क्या हुआ, सिस्टर शिवानी और सब जन, बहुत सारे जन ये बोलते हैं, किसी और ने अगर हमको गुस्सा दिला दिया मतलब मेरे फीलिंग्स का रिमोट उसके लाइफ में है, आई मीन उसके हाथ में। ऐसा तो नहीं है, मेरी फीलिंग्स का रिमोट तो मेरे पास होना चाहिए ना, कि आई वांट टू लिसन टू सैड सॉन्ग्स, आई वांट टू लिसन टू हैप्पी थिंग्स, इट शुड बी इन माय कंट्रोल।
Yeah, so she's telling us we can be a master of our feelings by keeping a check on how we react, how we respond. और उसके लिए उन्होंने ये जो ऑप्शंस दिए हैं, use them and you will see कि आपकी फीलिंग्स एक्चुअल में आपके कंट्रोल में धीरे धीरे आने लगी. It will not happen overnight. आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. हर सिचुएशन में आपको अपने पर्सनल इमोशनल ट्रेनर के सामने ये सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी. देन यू विल स्टार्ट मास्टरिंग इट. एंड ऑस्कर वाइल्ड कह रहे हैं जब हम अपनी फीलिंग्स को ऐसे मास्टर कर लेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, हम अपनी फीलिंग्स के स्लेव नहीं होंगे. हम किसी और के रिएक्शन से मेरे लाइफ में गड़बड़ नहीं होएगा, है ना. किसी और ने कुछ कहा, मैंने रिएक्ट किया, मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी. देन आई विल नॉट बी एट द मर्सी ऑफ माई इमोशंस. कि उसने मुझे गुस्सा दिलाया, मैं गुस्सा हो गई, तो मेरी लाइफ कैसे हो गई, बिलो द लाइन चली गई और हम नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट करने लगेंगे. उसने मुझे खुशी दी तो मैं खुश हो गई, फिर क्या हुआ, मेरी लाइफ अच्छी चलने लगी. तो कौन कंट्रोल कर रहा है मेरी लाइफ को? नॉट मी. समवन एल्स इज मेकिंग मी एंग्री और हैप्पी और मेरी लाइफ वैसे चलने लग रही है. तो क्या ये तो ठीक नहीं है. सो शी इज टेलिंग अस वी शुड बी यूजिंग आवर फीलिंग्स टू लिव अ लाइफ दैट वी वांट, नॉट डिपेंड ऑन द अदर पर्सन टू चेंज आवर फीलिंग्स. ओके, सो लेट्स सी हाउ वी डू दैट. और ये आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगा. You can change any negative situation in your life, but you can't change it with the bad feelings. You have to react differently to the situation because if you keep reacting negatively, your bad feelings will magnify and multiply the negativity. When you give good feelings, the positivity magnifies and multiplies. Even if you can't imagine how a particular situation can change into something positive, it can. The force of love always finds a way. या तो वो बोल रही है हम कोई भी नेगेटिव सिचुएशन अगर हमारे लाइफ में है तो हम उसको और नेगेटिविटी देके चेंज नहीं कर सकते. माने क्या हुआ, अगर अंधेरा है तो हम अंधेरे को कैसे निकाल सकते हैं, वहां पे सिर्फ लाइट ऑन करके, वहां पे सिर्फ पॉजिटिविटी देके. ठीक है, तो हम ऑलरेडी एक नेगेटिव सिचुएशन में सैड होके, रो के, दुखी होके और अंधेरे की फीलिंग्स यूज करके उस सिचुएशन को नहीं हटा सकते हमारी लाइफ से. हम कैसे हटा सकते हैं, वहां पे पॉजिटिविटी देके, वहां पे डिफरेंट रिएक्ट करके. ओके, अगर हम पॉजिटिव रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, मेरे लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ेगी, पॉजिटिविटी बढ़ेगी और वो और बढ़ बढ़ के मेरी लाइफ में उजाला लेके आएगी. अगर हम कोई सिचुएशन में नेगेटिवली रिएक्ट करते हैं तो नेगेटिविटी बढ़ेगी, राइट. वी आर अट्रैक्टिंग मोर नेगेटिविटी एंड इट विल मेक द सिचुएशन वर्स. शी इज टेलिंग अस चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, अगर हम वहां पे पॉजिटिविटी देते हैं तो वो सिचुएशन चेंज होगी ही. कहीं ना कहीं से लॉ ऑफ लव, फोर्स ऑफ लव वहां पे एक सॉल्यूशन ढूंढ ही लेगा. ओके, वी आर नॉट टू थिंक कि कैसे ठीक होएगा, हम पॉजिटिविटी देंगे तो सामने वाला कैसे चेंज हो जाएगा, ये हमको नहीं सोचना है, वो होगा ही. ठीक है, आप ट्राई करके देखो. दोज हु हैव एक्सपेरिमेंटेड और ट्राइड दिस वो और ज्यादा यूज करेंगे. आई एम तो टेलिंग यू कि मैंने कैसे चेंज किया है. ओके, वेदर इट्स विद माई फैमिली, वेदर इट्स विद माई क्लाइंट्स, आई हैव सीन मैजिक्स हैपनिंग. I have seen the changes in the people around me because it all started with the changes in me. Okay, I am not saying कि वो बदल गए, पहले हम बदले तब बाकी लोगों में वो चेंज दिखाई देता है. Okay, so when we start responding differently, when I am choosing negativity, then I am attracting negativity. तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है. When I am choosing positivity, that is when I am changing and the other person has to change then. Okay, so we will stop here. So आप इस पूरे जो हम लोगों ने 4 पेजेस आज पढ़े हैं, प्लीज रीड इट ऑन योर ओन, 4-5 जितने भी, प्लीज रीड इट ऑन योर ओन एंड ट्राई एंड इम्प्लीमेंट इट इन योर लाइफ. ओके, सो थैंक यू Pallavi ji, thank you for reading so nicely for all of us. So we'll do gratitude, and if you have a question, thank you Kushi for this drop of honey. I'll have to look for this book. बचपन की कहीं पे ये बुक रखी हुई है. I'll have to look for it in my house. Yeah. Okay, so let's join our hands, close our eyes, and let's be grateful. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you, Bhagwan Ji, for showing us this path of positivity. Thank you for blessing us with the understanding to implement all of these tips in our life to make our life magical. Thank you for the positivity that I spread in my family and friends. Thank you for their smiles, laughter, and happiness. Thank you for the guidance that you keep showing us. Thank you, thank you, thank you. Thank you, everyone. Thank you for being here. Any questions? Sharing. One thing only. You said to write that negative thing, then strike off, and then write positive things. Now every day we have to write 10 positive things. अब आपने स्ट्राइक कर दिया है, अब आपको उस पॉजिटिविटी पे ध्यान देना है. ओके,
जो आपने पॉजिटिव चीजें लिखी हैं, लाइक अ रिमाइंडर, यू हैव टू फोकस ऑन दैट ओनली एवरी डे नाउ। ओके, आपको ट्राई करना है ना, कि आप सिर्फ उस पॉजिटिव चीजों को देख रहे हो। कुछ सिचुएशन आ रही है ऐसी, देन यू हैव टू थिंक ऑफ दोज थिंग्स। ओके, Okay, thank you. थैंक यू। हाँ, यस, आई हर्ड अ शेयरिंग, हु सेड? हाँ, यस पल्लवी जी। हाँ मैम, हाँ, एक्चुअली मैम हम लॉयर बाय प्रोफेशन, ओके, तो आज कोर्ट में मुझे कॉस्ट डिपॉजिट करना था, उसका टाइमिंग था 3:30 तक, हाँ, और मेरा ऑलरेडी एक मीटिंग शेड्यूल था उसके पहले। तो मैं कैसे तो करके 3:25 तक वहां पे पहुंची, एंड हाँ, आई मैनेज करके वहां पे वो कॉस्ट डिपॉजिट किया। इस हम्म, बार कॉन्शियसली आई रिमेम्बर टू से थैंक यू टू द अदर पर्सन। ये मुझे एकदम स्ट्राइकिंग लगी, जाते वक्त पहले गई, आगे निकल गई थी, फिर से रिटर्न गई, एंड देन आई सेड थैंक यू टू हर। तो ओके, शी हैज वाओ, कोऑपरेटेड, शी वेटेड, उसने रजिस्टर रखा था मेरे लिए स्पेशली आगे के 10 मिनट, तो क्लोज यानी क्लोज कर देते हैं 30 को। ओके, तो दिस वेरी इज नाइस। लाइक कि कुछ बहुत सारी चीजें से ना याद आती है, लाइक वो इनकॉर्पोरेटेड Okay, बिकॉज ऑफ योर very nice. लेक्चर्स, so special Okay. thanks to you. Thank you, not lectures. We are just discussing. Or when you said thank you to her, how did she react? Cheers, she gives a smile. है ना? तो अच्छा लगा ना? तो आप देखो, ये इसको अपनी हैबिट बनाओ, ये नॉर्मल आपको माने, इट शुड बिकम योर सेकंड नेचर नाउ, कि थैंक यू तो बोलना ही है। ठीक है, तो यू कीप प्रैक्टिसिंग एंड यू विल सी दीज चेंजेस इन योर लाइफ आल्सो। ओके, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग। या मेरा एक शेयरिंग है। हाँ, आज मेरा एक लोन का स्टेटमेंट आया, तो हमेशा एक रहता था कि अरे स्टेटमेंट है, इतना ईएमआई जाता। आज पता है वो स्टेटमेंट देख के मुझे खुशी हुई, मुझे लगा कि अरे वाह, इतने पैसे की मैं इतनी अच्छे से ईएमआई पेमेंट कर पा रही हूँ करके। वाह, वाओ, तो गुड, आपकी वेरी बात नाइस। याद आई थी कि हाँ, जब भी कुछ हो मतलब समय वाव करना है कि हाँ इतने पैसे हैं मेरे पास कि मैं इतने आराम से ये पेमेंट कर पा रही हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। और आप ये ऐसे सोचो, वाओ, मैंने इतने सारे रुपए दे चुके हैं ऑलरेडी, और इतने हाँ, सारे दूंगी, माने मेरे पास हैं तभी तो मैं दूंगी, हाँ। टू स्टार्ट फीलिंग लाइक दिस। ओके, नहीं एंड तो पहले उसको कैलकुलेट करके लगता था बाप रे इतना सारा, मतलब इतना देना पड़ता है ऐसा। आज वो फीलिंग बिल्कुल नहीं आई करके। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बस ऐसे ही प्रैक्टिस करते जाइए श्वेता जी, एंड जस्ट सी कि कितना मैजिक होएगा अभी। ओके, जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, थैंक यू। यस, या एनीवन एल्स वांट्स टू शेयर और से समथिंग? अब सबको अपने लाइफ में रिलेशनशिप्स पे वर्क करना है। ओके, बिकॉज दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग विच विल मेक योर लाइफ मैजिकल। माने हर एरिया में मैजिक्स होंगे इफ यू आर वर्किंग ऑन द रिलेशनशिप्स। मनी में तो रिजल्ट दिखते ही हैं, ठीक है। अगर हमारे रिलेशनशिप में कोई कुछ ना कहीं चैलेंज है, इफ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, देन द रियल मैजिक्स विल स्टार्ट हैपनिंग। ओके, सो मैम थैंक यू। एक क्वेश्चन है, हाँ, एक बोलिए। क्वेश्चन। हाँ, कोई ऑफेंड होता है, किसी को हाँ, तो वो अपने सिर्फ शेयर करता है, हम्म, तो अगर हमने कुछ रिएक्ट नहीं किया, जैसे इसमें टर्न अवे, डोंट गिव फीलिंग्स, तो उनको ज्यादा ऑफेंड होता है कि अरे सुन के भी नहीं लिया क्या, आई वाज जस्ट एक्सप्रेसिंग कि मुझे कैसे हर्ट हुआ है। हाँ। देन नहीं, वो अगर आपके संग शेयर करे, नहीं, वो क्या कह रही है, अगर सामने वाले में कुछ नेगेटिविटी है तो उसकी नेगेटिविटी से दूर होना है आपको। ठीक है, उस पर्सन से दूर नहीं होना है। अगर सामने वाला पर्सन कुछ शेयर कर रहा है आपके संग, माने ऑफेंड मतलब माने वो आपसे कुछ भी शेयर कर रहा है कि उसके लाइफ में क्या हुआ, यही ना, कि उसके लाइफ में कुछ ब्रेकडाउन चल यस रही है। यस यस, हाँ, तो आपको उसको गाइड करना है टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। ठीक है, दो तरीके होते हैं एक पर्सन को गाइड करने के लिए। एक मतलब आपने किसी की बात सुनी, या तो आप शशिकला की तरह रिएक्ट कर सकते हो, हाँ एकदम गलत किया उस पर्सन ने, एकदम भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक ये हो गया। तब क्या हुआ, तब आप नेगेटिव हो रहे हो। सामने वाले ने कुछ बोला और आप थर्ड पर्सन का सपोर्ट कर रहे हो, मतलब कि नहीं, भूल से हो गया होगा, हर बार तो नहीं होता है, देखो वो कितना तो तुमको प्यार करता है। इवन आई एम जस्ट गिविंग, आई डोंट नो कौन सा पर्सन था, क्या था। तो आप अगर वैसे आंसर कर रहे हो तो यू आर टेकिंग दैट पर्सन ऑन अ पॉजिटिव साइड। ओके, तो ये वो नहीं बोलेगी आप चुपचाप बस सुन लो। नहीं, अगर आप उसके लाइफ में, अगर वो आपका संग कुछ शेयर कर रहा है, मे बी कंप्लेनिंग अबाउट सम पर्सन, या उसके लाइफ में हेल्थ में कुछ ब्रेकडाउन है या कुछ है, वो शेयर कर रहा है, तो आपको उसको पॉजिटिवली सपोर्ट करना है। अगर वो हेल्थ के बारे में कुछ बोल रहा है तो यू कैन से, बट चलो अच्छा है, अभी तो पहले से तो तबीयत अच्छी हो रही है, तुम्हारे घर में लोग हैं, तुम्हारी टेक केयर कर रहे हैं, डॉक्टर कितनी अच्छी दवाई दे रहे हैं, इस तरीके से आप उससे बात कर सकते हो। नॉट टू कीप क्वाइट। कीप क्वाइट मतलब हो गया कि आपने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया, यू आर नॉट शोइंग कंपैशन, वो ये हो गया। रॉन्डा बन कह रही है, अगर किसी पर्सन में कुछ नेगेटिविटी है तो उस नेगेटिविटी पे नहीं ध्यान देना है। माने कोई पर्सन बहुत गुस्सा कर रहा है और आप बार बार यही बोल रहे हो, तो इतना गुस्सा करते हैं, इतना गुस्सा करते हैं, गुस्सा तो नाक पे रखा रहता है, ये नहीं बोलना है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हम उसके उस
नेगेटिविटी, एंगर पे हम ध्यान दे रहे हैं. करने को वो क्या कह रही हैं? इग्नोर द एंगर ऑफ दैट पर्सन, फोकस ऑन द अदर गुड थिंग्स अबाउट दैट पर्सन. ओके, ये वो कह रही है. टर्न अवे फ्रॉम दैट नेगेटिविटी ऑफ द पर्सन एंड फोकस ऑन द पॉजिटिविटी ऑफ दैट पर्सन. ओके Okay. ओके, क्लियर हुआ? या Yes. या, ठीक है. Thank you. थैंक यू, थैंक यू. सो लेट्स कॉल इट अ Thank you. नाइट. या, Happy chocolate day, Priya ji. oh, happy chocolate day. Thank you, thank you. Same to you. So sweet, Renu ji. Really sweet. Thank you. एक दिन मिलके देना होगा आपको फिर चॉकलेट. ओके, यस, ठीक है. Happy chocolate day, Priya ji. थैंक यू, थैंक यू. Good music, yeah? Okay, cool. थैंक यू हम सबके लिए. हैप्पी चॉकलेट डे ना, चॉकलेट डे आपने बोला ना. यस, या, सो स्वीट. थैंक यू सो मच. ठीक है, गुड नाइट एंड सी यू ऑल Thank टुमारो. you so much, Dee. Thank you. Thank you. Thank you. Priya ji. Thank you. Good night. See you Priya all. ji, all of you. Yes. Thank you.